सुफलां मलयज शीतलां शस्य शस्य श्यामलां श्यामलां मातरं मातरं वन्दे वन्दे मातरम्। मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे वन्दे मातरं मातरम् वन्दे वन्दे मातरम्। मातरम्। भारत माता की जय। जय। वो तो भगवान साहब दास जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इनफैक्ट बैंक ऑडिट पर हम ऑलरेडी एक सेमिनार कर चुके हैं जिसमें अपने गोपाल जी और राकेश जी ने अपने अपने प्रेजेंटेशंस लिए थे। तो इनफैक्ट अब हमारी 4 टोटल सेमिनार, जैसे हमने उस दिन भी कहा था, आज टोटल मिलाकर के 4 सेमिनार हम लोगों ने प्लान किए हैं। उसमें से दूसरी सेमिनार आज है और आज की सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि शशि जी न केवल एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बल्कि सही मानों में ही हैज बीन इन्वॉल्वड इन द प्रोफेशन विद द प्रोफेशन इन सो मेनी ways, and particularly so far as peer review field is concerned, he is very active and he has been doing so many peer reviews every year. And not only that, he has been doing peer reviews, he is a regular faculty to the peer review board also. So he travels all across India. So his topic is planning and documentation. So before we all deliberate on our topics, I think if we give some inputs how to plan the audit and how to document whatever evidences we are collecting during audit period, that will be a great point to be noted. Because sometimes what happens, we do a lot. We really work hard so far as audit process is concerned, but we hardly or we are very miser in documentation. We are not that planned or updated what documents are required to be kept in the file, so that in case of some contingency, if they are required, this can be produced before the regulators or any authorities which they require, or they want to confirm whether we have really worked upon the assignment as per the regulatory requirement or not. So straightway I will request Rohit ji हैं अभी विपिन जी हैं? हाँ विपिन जी है ना? तो विपिन जी आपका वेलकम। अगर रोहित जी नहीं है तो मुझे सबसे पहले लगता है आपका मैं प्रोटोकॉल थोड़ा मिस कर रहा हूँ। विपिन जी, रोहित जी आ चुके हैं? रोहित जी ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं अभी नहीं किए। ओके, तो मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल को मिस कर रहा था। तो एनीवे जो मैंने टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन दे दिया वो तो दे ही दिया है। तो स्टेट वे नाउ आई विल रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी श्री विपिन अग्रवाल जी टू give the welcome address. Then straight way I will request Sasi ji to come to the topic, please. I welcome all the members or the participants to this seminar. We have planned this seminar like this. This is a series of seminar on bank audit. Today's session will be taken over by Shri C.S. Shashi Gupta ji, and tomorrow the session is will be taken over by Akesh Goyal, Akesh ji and Bhagwan Das Gupta ji. And maybe we will be extending this seminar to 14th also. It's not yet final. Maybe today we will finalize it. That will be taken over by CA Amarjit Chopra ji. So that we will let you know after this session. And the program of today's seminar is like this. Shashi ji will be covering audit planning and documentation from peer reviewers point of view. And tomorrow the session will cover IRCA norms and restructuring of SME advances. Now I would request CA Shashi Gupta ji to please start his deliberations. Thank you. Thank you,
Bhagwan Das ji, thank you, Vipan ji, and other panelists. Sir, your voice is not very audible. Can it be a Voice bit is louder? not coming. Just a minute. Can we try it without the headphones? Just a minute. I have voice. Is it okay now? Yes, sir, it's a bit better, and It's maybe we better can. now. Acha, I would like my screen to share. Okay. Is it okay now? Yes, sir, better. Very Right. So once again, welcome all the participants. और जैसा कि आज मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऑडिट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करने के लिए, तो जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, प्लानिंग हम देखते हैं, प्लानिंग हमने बहुत सीखी भी है, आगे भी सीखते रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन जहाँ तक सवाल आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास जब भी हम कोई ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट में हमारे पास जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, एसएस, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी ऑडिट करना है, वो हमारा गवर्न करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को बेसिकली कुछ इस तरह से प्लान किया है। ऑडिट प्लानिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें तो अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर जब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, जब पीयर रिव्यूअर आपके पास आएंगे, तो जब आपकी फाइल को देखेंगे, तो फाइल के अंदर वो सबसे पहले कुछ जो डॉक्यूमेंट है आपने रखे हुए हैं, उसका इंडेक्स एक देखने वाली जरूरत होती है कि जो भी एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट, दोज हैव बीन प्रॉपरली इंडेक्स्ड। और इंडेक्सेशन के अंदर आप जो एक ही ऑर्डर मैंने सामने बनाया, तो इसी ऑर्डर के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स अपना रख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद फिर आपके पास आता है एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर्स। तो जब प्रीवियस ऑडिटर्स की हम एनओसी की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कम्युनिकेशन है, ये हमारे एथिक्स में भी इसके जिक्र आता है कि अगर आपने प्रॉपर प्रीवियस ऑडिटर से आपने कम्युनिकेशन किया या नहीं किया। तो शेड्यूल फर्स्ट पार्ट 1 क्लॉज 8 वो ये कहता है कि अगर आपने कभी भी, जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अगर आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन नहीं किया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, वो आपने किस तरह से कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको रखना है अपने पास, पहली चीज तो है इमीडिएटली आप उनको मेल लिख सकते हैं। तो मेल की एक कोई भी आप स्क्रीनशॉट लिख के एक फाइल में रख सकते हैं, या उसको सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप अपने पास हार्ड कॉपीज ही रखें। अगर आपने सॉफ्ट कॉपीज वगैरह भी अपने पास रखी हुई हैं, तो इवन दैट विल बी गुड इनफ। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट साइलेंट माय फोन। तो आपने जो मेल भेजी, उसकी आप कॉपी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और कम्युनिकेशन आपने किया उनके साथ, फोन के ऊपर किया हो गया, तो आप उनको एक रजिस्टर्ड लेटर जरूर भेज दीजिए। और जो रजिस्टर्ड लेटर है, और उसकी जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी पोस्ट ऑफिस से, दैट यू कैन कीप विद योर रिकॉर्ड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर, आपने कम्युनिकेशन भेज दिया। कम्युनिकेशन भेजने के बाद एक इसके अंदर एंगेजमेंट लेटर की बात आती है। और एंगेजमेंट लेटर है कि जो भी आपके पास, और एंगेजमेंट लेटर में आपने जब ब्रांच में जाते हैं, तो हमारे पास एक सेट लैंग्वेज है उसकी, एंगेजमेंट लेटर की। ये एंगेजमेंट लेटर हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये एंगेजमेंट लेटर आपको ब्रांच से साइन करवाना होता है। तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है, वो केवाईसी के बारे में बात आती है। जब आपके पास कोई ब्रांच अलॉट होती है, तो यू हैव टू सी कि
एनवायरनमेंट है, CBS कौन सा एनवायरनमेंट है, और एंटिटी की कौन सा वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सो दैट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आपने उनकी जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं, देन यू कैन सी टू इट। KYC के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रीवियसली उनकी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से भी एक बहुत आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। तो एज ए पीयर रिव्यूअर जब हम रिव्यू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसने KYC के लिए नॉर्म्स भी अडॉप्ट किए हुए हैं नहीं किए। तो उसमें ये जो चार पॉइंट मैंने एक लिखे हुए हैं इसके अंदर से, जैसे आप देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और लुक आउट फॉर की ऑडिट मटेरियल्स। अगर उनकी जो फाइनल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके अंदर से कुछ की ऑडिट मैटर्स हैं तो वो क्या हैं। और तीसरी चीज आप जो चौथी चीज है वो उसमें जो आप ब्रांच से जब बात करते हैं तो डिपॉजिटर्स ओरिएंटेड है या बोरोअर्स एडवांसेस ओरिएंटेड है, ये सब चीजें आपको इनिशियली देख सकते हैं और इससे आपका KYC एक तरह से पूरा हो जाता है। तो ये सब कुछ मैटर्स जो हैं वो एज ए रिव्यूअर वी कैन लुक आउट और आपको मेंटेन करने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। नेक्स्ट आइटम जो इसके अंदर से हमारे पास आएगा वो है स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट हमारे को बैंक ऑडिट के लिए चाहिए होती है। अब स्टाफ के अंदर सभी को मालूम है कि टाइम बहुत कम होता है और टाइम कम होने के कारण से वी हैव टू सी कि क्या हमारे पास स्टाफ स्किल्ड स्टाफ है या नहीं है। तो रिव्यूअर में जब आपके पास आएंगे तो किन स्टाफ को आपने डिप्यूट किया हुआ है और उनके पास एडिक्वेट स्किल्स हैं या नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उस डॉक्यूमेंट को अपनी फाइल के अंदर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि जब आपने कम्युनिकेट ब्रांच के साथ किया तो क्या ब्रांच को आपने कोई इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको भेजा है या नहीं भेजा है। वो इनिशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत इसलिए महसूस होती है तो जितनी भी बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको अवेलेबल हो और आप अपना काम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकें। सो एक सेट हमारे पास गाइडलाइंस हैं, सेट हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसमें हम जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी हमारे को चाहिए होती हैं वी कैन फॉरवर्ड टू द ब्रांच मैनेजर और Sir, there is an issue with the connection, internet connection. Your video stopped. हेलो, Share your screen again, sir. The connection. क्या हुआ? हेलो, Yes, sir. You're audible. बीच में कहाँ रुका ये? Sir, share your screen again. सब कुछ दोबारा स्टार्ट हो गया। Open Zoom and there is a green button at the bottom. Yes, sir. We can see your screen now. All right. Thank you, sir. Hello. Audible, sir. Audible. I'm audible? Yes, sir. All right. Okay, friends. There is some problem as far as the technical issues are concerned. So never mind.
जैसे मैंने इनिशियली आपको शुरू में बात करी कि हमारे पास जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आती है तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर स्टेट हम लोग आते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जहां पर हमारे को पूरे बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। पहला हमारे पास स्टैंडर्ड है SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने पीछे अभी थोड़ी सी पहले बात करी थी। इसका जो एंगेजमेंट लेटर है ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेंबर्स उसको जो हमारे पास एंगेजमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ब्रांच मैनेजर से उसकी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं और अपनी फाइल में इसको रख सकते हैं। सो दिस इज एन वन डॉक्यूमेंट विच इज इम्पोर्टेंट। ऐसे 230 में जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आते हैं तो जितने भी दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं व्हाट्सएवर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके हमने क्या वेरिफिकेशन किया, क्या चेकिंग करी, उन तमाम चेकिंग्स के लिए से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास SA 230 में कवर हो जाते हैं। और तो अब आप देखेंगे जब हम दूसरे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हमने ऑब्टेन करने हैं और वो 230 का पार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब लेट अस कम टू SA 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। अब जब हम बैंक ब्रांच ऑडिट करते हैं तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं सामने कि RBI के जो सर्कुलर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोविड से रिलेटेड एक सर्कुलर आया जिसके बारे में भी भगवान दास जी बात करेंगे। तो एक सर्कुलर उसमें आपके पास अगर फाइल में है उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, सो दैट कैन बी ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर एसे। GST के प्रोविजंस हैं हमारे पास, ब्रॉड जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं वो क्या प्रोविजंस हैं। हमने जब इनपुट GST के अंदर लेना है तो इनपुट में क्या चीजें कितना लेना है, 50% लेना है, दैट्स ए टर्म, तो GST से रिलेटेड हो गया। TDS के हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं, तो TDS के जब हम रिटर्न्स वगैरह चेक करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास फाइल के अंदर वो भी आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर ब्रांच जो आपको अलॉट हुई है उसमें ब्रांच मैनेजर की पावर्स क्या है। क्या वो मैनेजर लेवल की ब्रांच है, आपके पास सीनियर मैनेजर लेवल की ब्रांच है, चीफ मैनेजर की ब्रांच है, AGM लेवल की ब्रांच है, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट उनकी पावर्स हो जाती हैं। टर्म लोन वो कहाँ तक कितना सैंक्शन करेंगे, CC लिमिट कितना सैंक्शन कर सकते हैं, बिल्स कितना सैंक्शन कर सकते हैं, नॉन फंड बेस्ड कितनी आपको प्रेजेंट कर सैंक्शन कर सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जितनी भी हैं वो आपके पास डिपेंड करती हैं पावर्स ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो ये एक जरूरी है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जब आप बनाएंगे तो ब्रांच पावर्स का एक आप शीट जरूर बनाइए कि कौन से लेवल की ब्रांच है और उसके अंदर से पावर्स हैं पूरे बैंक ने उस कैटेगरी के अंदर कितनी डेलीगेट करनी है। सो ये कुछ एग्जांपल थे आपके पास SA 250 के कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारे पास आता है SA 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब जैसे हमने बात करी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट जब लेटर देते हैं सो दैट कम्स अंडर SA 260। और दूसरी चीज इसके अंदर से हमारे पास आती है जब आपके पास कोई ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो ऑब्जर्वेशंस को आपने कैसे ब्रांच मैनेजर को कम्युनिकेट किया और कैसे आपने ब्रांच मैनेजर से उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर उनका रिएक्शन लिया। सो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को ब्रांच मैनेजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप उसको फाइनल कोई शेप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इट मींस कि आपने SA 260 का वायलेशन किया, उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं किया। तो इन केस आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस है प्लीज मेक श्योर कि वो ऑब्जर्वेशंस आपके पास आपने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन में आप कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर आपने अगर सपोज एक स्मॉल ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच में आप 3 से 5 दिन लगाते हैं तो प्लीज इंस्ट्रक्ट योर पीपल कि जब आप वो डेली बेसिस के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया तो एक राइटिंग एक पेपर के ऊपर लिख के उनको आप हैंड ओवर कर सकते हैं एंड टेल देम टू प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरीज। कई लोगों का व्यू इसके अंदर से ये होता है कि भाई हमको जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बाद में देनी चाहिए जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाए। वेल दैट इज
जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे हैव टू टेक कॉल देमसेल्व्स। बट मेरा यहाँ पर सिर्फ जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आपके पास जब तक प्रॉपरली आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को कम्युनिकेट नहीं किया तो आप किसी भी एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो टाइम फैक्टर अगर बीच में आता है उसके साथ कहीं पर वो डाइल्यूट तो नहीं हो जाती है और जो आप कहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे 260 में आपके पास जो ऑडिट रिक्वायरमेंट आपने दी है और ऑडिटर्स जो ऑब्जर्वेशन है अलॉन्ग विद द एमओसीज आल्सो, तो ये सब चीजें आपके पास इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो आपके पास है दैट इज SA 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है उस ब्रांच के अंदर वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है। और एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपके पास सीबीएस सिस्टम में आपके पास डिफरेंट आपके इन्फोसिस का है, आपके पास टाटा का है और जो फर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, तो ये इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ब्रांच आपकी जो बैंक है वो कौन से सिस्टम में फॉलो कर रही है, तो दैट शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। ब्रांच मैनेजर में आपने जो उसकी पावर्स क्या हैं ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। और इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि रिस्क जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर किस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या आपने जो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज है, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अपने पास रखा है? अब उसका डॉक्यूमेंट क्या आएगा, जो ऑफिस ऑर्डर्स होती हैं आपके, ऑफिस ऑर्डर एक रजिस्टर नॉर्मली मेंटेन करते हैं, मेमो भी होते हैं, तो जहां पर रोटेशन का उन्होंने पीरियोडिकल आपके पास ऑर्डर्स पास किए होंगे, तो इट इज बेटर कि आप उसकी कॉपीज को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखें। क्योंकि जो हमारे पास पीछे फ्रॉड हुए हैं, पीएनबी के केस के अंदर फ्रॉड हुआ है, ये नीरव मोदी के केस में था, तो वहां पर रोटेशन ऑफ ड्यूटी नहीं थी। एक पर्टिकुलर जो लोन ऑफिसर था वो अपनी सीट पे तकरीबन 7-8 सालों से रहा। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास एक ये डॉक्यूमेंट रोटेशन ऑफ ड्यूटीज का आपकी फाइल में लगा हुआ है, तो आप हमेशा एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि यस वी हैव सीन, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमने चेक किया है कि रोटेशन ऑफ ड्यूटीज वहां पर प्रॉपरली। सो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर जॉइंट कस्टडी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैश आपके पास हमेशा जॉइंट कस्टडी में होता है, तो और कैश में आप ये देखेंगे कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन वंस इन ए मंथ होती है, तो जिन डेट्स के ऊपर बैंक मैनेजर ने विद सेकंड पर्सन उसको चेक किया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप उन जितने भी दिन है उनकी आप फोटो कॉपी करवाएं या उसको क्लिक करें। यू कैन सिंपली आप एक पेपर के ऊपर कौन कौन से डेट्स को, मंथ की कौन कौन सी डेट्स को आपने ब्रांच ने उसको एंटायर फिजिकल जो कैश है उसको वेरीफाई किया है, वो डेट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने डेट्स को भी नोट डाउन किया हुआ है, 12 डेट्स को अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है, तो दैट विल बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कि इन डेट्स को आपने कैश स्क्रोल को चेक किया है, कैश बुक को चेक किया, जहां पर 2 आदमियों के सिग्नेचर्स थे और उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ था कि ये एंटायर कैश हैज बीन चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपके पास जो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आता है, वो आता है ऑपरेशंस इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स। जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, इनऑपरेटिव अकाउंट्स में भी ये होता है कि अगर सपोज कोई अकाउंट आपका इनऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया, तो जब उसको आपने दोबारा से ऑपरेशनलाइज करना है, तो वहां पर भी एक सिंगल पर्सन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकता, वहां पर भी जॉइंट ऑपरेशन होता है। तो ऐसे कुछ केसेस जो आपने देखे हो कि जहां पर अकाउंट्स इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव में आ गया। अब जो इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव है उसकी एक स्टेटमेंट निकल आती है सीबीएस एनवायर के अंदर, तो जब आप जाएंगे तो आपने वो स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किए कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव में कन्वर्ट हुए, तो आपने उनमें से कुछ टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर आपने अकाउंट्स को सेलेक्ट करना है और उनको अपने शीट के ऊपर आप नोट करके लिख लीजिए कि सेविंग्स अकाउंट नंबर सो एंड सो, सेविंग्स अकाउंट नंबर सो एंड सो, दी डेट ऑफ ऑपरेशन कौन सा था, लास्ट ऑपरेशन क्या था और किस डेट में आपने इसको जो ये है इसको इन्होंने ऑपरेटिव बनाया और उसमें जॉइंट सिग्नेचर्स थे या नहीं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो जॉइंट ऑपरेशन, तो ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं जो हमारे को इस पर्टिकुलर ऐसे 315 के थ्रू लेके जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास आता है 320, इट इज अबाउट मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी जो है, अब हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हम सिर्फ जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के अंदर हम टेस्ट बेसिस के ऊपर करते हैं, और हम उसके अंदर से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो हमारे पास हमने ऑडिट किया है वो मतलब कि मटेरियल जो है आइटम्स वो हमने उसके अंदर से चेकिंग करी है। और इसमें आप अगर आप देखेंगे, अब मटेरियलिटी का और जो मिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट आता है उसमें मिस स्टेटमेंट भी आती है और ओमिशंस भी आती है। और इसमें जो डेफिनेशन कहती है, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है SA320 से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, तो मटेरियलिटी, अब बैंक ब्रांच ऑडिट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मटेरियलिटी कैसे आपको इफेक्ट करेगी, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें से पहले तो आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी आइटम्स हो सकती हैं जो एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग नेचर की है। सो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड कहता है कि जितनी भी एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेपरेटली शो करनी है। तो वो एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स आपके पास क्या आती, उसके बारे में आपने अपना ऑडिट ऑब्जर्वेशन बनाना है। ऑब्जर्वेशन लेके उसमें ब्रांच मैनेजर से उसका एक्सप्लेनेशन लेना है कि क्या आइटम्स क्या थी और क्या वाकई ही वो एक्सेप्शनल थी या नॉन रिकरिंग थी कि उसका सेपरेट से अलग से दिया हुआ है। सो इन केस यू कम अक्रॉस एनी सच आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में आपने जब डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स उसका LFAR में भी कहीं यहाँ पर डालेंगे उसके बारे में, तो आपके पास नोट्स के अंदर, वर्किंग पेपर्स के अंदर डिटेल आपके पास होना चाहिए। फिर एक इसके अंदर से हमारे पास मटेरियलिटी में और भी आता है चार्जेस और क्रेडिट्स रिलेटिंग टू प्रायर ईयर्स। मींस कि अगर कोई भी आइटम आपके पास इनकम या एक्सपेंडिचर का प्रायर ईयर से रिलेट करता है तो भी आपके पास उसकी आपने, दैट इज ए मटेरियल आइटम, तो उसको भी सेपरेटली आपने डिस्कस करना है और अपना जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उसके बारे में आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए। सिमिलरली जो एमओसीज हैं, एमओसीज में जब भी आप जब देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो कई ऑडिटर्स जो हैं छोटी छोटी एमओसीज 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, उसको भी उसके अंदर से डिस्कस कर लेते हैं, एमओसी डाल देते हैं। तो दीज एमओसीज आर टू बी reported on the basis of SA320 only those MOCs which have a material, which are going to have a material impact on the total working of the branch. I'm not talking about the total working of the bank, I'm talking about the total working of the branch. उस चीज को आपने emphasize करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके पास कोई ऐसी MOC है जो आपकी लॉ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी something relates to GST or something which relates to TDS, then of course उनको आपको 100% आपको रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, उसमें ये बात मैं समझता हूँ कि क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर भी अगर 100 रुपए से अगर आपके पास कम है तो हम उसको इग्नोर, लाइबिलिटी जो होती है, कलेक्शन होती है, आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है, तो 100 रुपए से कम होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एनी आइटम विच has impact up to 100 रुपीज, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा अगर कोई भी आइटम आपके पास, चाहे वो इनकम टैक्स में या GST के बारे में है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई MOC देना है, अगर MOC में आपने देना है तो देन आपको ये टोटल देखना पड़ेगा कि जो आपके पास मटेरियलिटी है, टोटल एडवांसेस कितने हैं। अगर सपोज आपके पास टोटल एडवांसेस 50 करोड़ के हैं, 50 करोड़ में अगर सपोज कोई, अगर एक MOC आपके पास 5,000 रुपए का आ रहा है तो उसके कोई वैल्यू नहीं है। सो एक ये जो सिमिलरली जो ये जो आपके पास मटेरियलिटी लेवल है, ये आपको अपनी ब्रांच टू ब्रांच आपका डिपेंड करेगा।
और ये आपकी जो है प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपके पास जो मटेरियलिटी लेवल है एज फार एज द इनकम और योर एक्सपेंडिचर एसेट्स और लायबिलिटीज, वो मटेरियलिटी क्या लेवल में। तो एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट आपकी फाइल के अंदर ब्रांच, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच का, तो आपने मटेरियलिटी लेवल किस तरह से डिफाइन किया, उसमें क्या लेवल थे, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो रिव्यूअर आपका रिव्यू करते हुए मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास आ जाता है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस में आपके पास क्या है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो पहले तो आपने जो इंपॉर्टेंट आइटम आपके पास आ जाती है कैश की। तो कैश जब आपने चेक किया है तो उसका आपने डॉक्यूमेंट क्या क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ओपनिंग डिनोमिनेशंस थी, जैसे आप किसी भी दिन जब आप ब्रांच के अंदर पहुंचे तो ओपनिंग कैश कितना था आपके पास, उसका डिनोमिनेशंस पूरा लिख लीजिए, और जब आपने चेक किया तो क्लोजिंग डिनोमिनेशंस क्या है। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाएगा, तो ये आपका, ये एक तरह से आपको प्रूव करेगा कि आपने कैश जो है वो फिजिकली काउंट किया है। ऑफ कोर्स जो कैश किस तरह से काउंट करना है ये हमने दूसरे सेमिनार में हमने देखा था और हमने डिस्कस किया था, मैं उसकी डिटेल्स में यहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यही है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन कैश का आपने किया उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और प्लीज मेक श्योर कि उस डॉक्यूमेंट पे आपने तो साइन किया होगा वहां पर रजिस्टर में कि आपने चेक कर लिया, तो ब्रांच मैनेजर से भी इस डॉक्यूमेंट को आप साइन करवाएं, और दूसरा जो सेकंड पर्सन है इंचार्ज है ज्वाइंट कस्टडी वाला, उनसे भी आप साइन करवाएं, उसके अंदर से रखें। फिजिकल वेरिफिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है। अगर सपोज ब्रांच में आपके पास इनवर्ड बिल्स आए हुए हैं जो डिस्काउंटेड बिल्स हैं, क्योंकि दैट्स आल्सो ए बेसिकली ए हार्ड कैश फॉर द ब्रांच जिसने इसको डिस्काउंट किया हुआ, और वो आपके पास आते हैं। अगर आपके पास बैलेंस शीट में इनवर्ड बिल्स हैं 31 मार्च के, तो उसका आपको स्टेटस देखना पड़ेगा। अब स्टेटस आज की डेट में क्या है कि आपने जो वेरिफिकेशन है ऑलरेडी हमारे पास अप्रैल मिड आ चुका है, और मेरा ख्याल से जब ऑडिट स्टार्ट करेंगे तो ये मई में जाके आपके पास स्टार्ट होगा। तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, जितने भी बिल्स वगैरह आपके पास आए हों, ऑल्दो अगर हम देखें कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो जो चीजें हैं सारी की सारी स्टैंड स्टिल करी हुई हैं, तो अगर सपोज उसके साथ बिल्स के साथ आपके पास जीआर है या आरआर है तो वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो बिल्स आपके पास आए हुए हैं वो कौन कौन से बिल्स हैं, उसकी डिटेल, और उसमें क्या उसकी जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है वो आपने वेरीफाई किया है या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसके ओनरशिप ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैं वो बॉरोवर को, जो बेनिफिशियरी है उसने ऑलरेडी ले लिए हैं और अपना जो अकाउंट है उसको लिक्विडेट बिना किए हुए। सो ये एक जो आपके पास इनवर्ट बिल्स का है ये भी आपको चेक करना है। और सिमिलरली जो सेफ के अंदर, सेफ आपके पास है, स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम में अगर और भी कोई भी डॉक्यूमेंट आइटम्स हैं आपके पास, टाइटल डीड्स हैं, किसी दूसरी ब्रांच की कीज हैं, डुप्लीकेट कीज हैं, या कुछ और भी आइटम्स हैं, तो एक इन्वेंटरी, कंप्लीट इन्वेंटरी आपने जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया है तो उसको आपने जॉट डाउन किया। सिमिलरली हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर ये होता है कि जो आपके पास प्रिंटेड सिक्योरिटी स्टेशनरी है उसको भी चेकिंग आपने एक उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और उसके लिए जो एक प्रॉपर वे है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का कि सीरीज है वहां पर जो स्टेशनरी होती है वो सीरीज नंबर, सीरियल नंबर से होती है। तो अगर सपोज आपके पास ड्राफ्ट बुक्स हैं, आपके पास पे ऑर्डर्स हैं आपके पास, या डिपॉजिट रिसीट्स हैं, ऑल्दो अब सीबीएस इन्वायरमेंट में ये कितना रेलेवेंट है उस चीज को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा ये जितना भी सिस्टम है वो ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। तो इन केस आपके पास कुछ ऐसे स्टेशनरी प्रिंटेड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक इन्वेंटरी एक शीट के ऊपर आपने बना के जब आप फिजिकली वेरीफाई करते हैं उसको भी अपने पास रखना है, और जब रिव्यूअर आपके पास आएंगे तो ये चीज आपके साथ उसको चेक करेंगे। ऑडिट एविडेंस के अंदर एक और हमारे को चीज देखनी है कि जितने भी आपने लोन्स एडवांसेस चेक किए हैं तो वहां में कितने लोन एडवांसेस आपने चेक किए, उन एडवांसेस के अंदर आपने
उनका अप्रेजल नोट है, सैंक्शन लेटर है, लेजर अकाउंट है, स्टॉक स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो क्या चेक किए हैं आपने और क्या अपने अपने पास रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी कि अभी हम देखेंगे सैंपलिंग जब हम करेंगे तो वहां पर मैं आपसे ऐसे 530 की जब बात करूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आपने सैंपल चेक सेलेक्ट करना है और किस तरह से आपने जब वो सैंपल चेक करेंगे तो सैंपल चेक कर रहे हैं तो वहां पर एडवांसेस कैटेगरी के अंदर जितने भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस कितना सैंपल आप चेक करेंगे, कितने अकाउंट्स आपने सेलेक्ट किए, तो उसमें इंडिविजुअल आपने जो चेकिंग करनी है तो उनको जब चेकिंग किया तो ये सब चीजें अप्रेजल नोट हो गया, सैंक्शन लेटर है, तो ये चीजों को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखना है। तो यहाँ से पता लगेगा कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किए तो उनको प्रॉपरली और एडिक्वेटली आपने चेक किया या नहीं किया। अब सैंक्शन लेटर है, सैंक्शन लेटर में अगर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है तो आप वहां पर उनको हाईलाइट कर सकते हैं सो दैट जब टोटल आप वो एक ओवरऑल व्यू लेंगे तो उन आइटम्स को हाईलाइट होने के कारण से वो सामने आपके पास आ जाए। तो ऑडिट एविडेंस जो है ऐसे 500 के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा का सारा आपको अपने फाइल में रखना है। और मैं यहाँ पर फिर एक बार आपके दोबारा से नॉलेज में लाना चाहूंगा कि जब तक आप ब्रांच के अंदर हैं तब तक तो आप ब्रांच से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इकट्ठा करना चाहें आप इकट्ठा कर सकते हैं, मगर एक बार आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कर दी, साइन कर दी और हैंड ओवर कर दी, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपके लिए सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप कलेक्ट करना चाहेंगे सब्सिक्वेंटली तो इट विल बी ए रियली वेरी टफ जॉब। सो माइंड इट कि आपके पास आपकी जो ऑडिट फाइल है वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इसके अंदर से हमारे पास आता है SA 505 विच इज अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जहां तक बैंक ब्रांच ऑडिट के सवाल है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस के अंदर आपको दूसरे बैंकों के साथ अकाउंट मिल जाए और वहां पर यहाँ पर जो है आपको ये देखना होता है कि जो बैलेंस है उस पर्टिकुलर आपकी अकाउंट दूसरे बैंक के साथ आपका वो रिकंसाइल्ड है या नहीं है, और उसमें आपको ये चाहिए कि जो सामने वाला बैंक है वहां से आपने बैलेंस कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी आई हुई है या नहीं आई। अब इसके अंदर से जो हमारे पास सत्यम का केस हुआ था एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो इसमें अगर पॉसिबल है अगर कंफर्मेशन आपके पास आपकी ईमेल के ऊपर या आपके एड्रेस के ऊपर आज आ सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर तो ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बट कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, तो द ऑडिटर विल हैव टू इंश्योर कि जो कंफर्मेशंस आपके पास आई हुई हैं दूसरे बैंक से वो आपकी एप्रोप्रिएट और जेन्युइन है या नहीं है, और उस हिसाब से आप उसको कॉग्निसेंस उसका ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का तो यहाँ पर बात नहीं बनती। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपके पास आता है SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, और इसमें आप जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो बैलेंस शीट है आपके पास और जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास करंट ईयर की फिगर्स हैं 31 मार्च 20 की हैं और 31 मार्च 19 की भी आपके पास फिगर्स है। तो आपस में आपको जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास हो सकता है कुछ ऐसी सामने आइटम्स आ जाएं कि जहां पर जो वेरिएशन है वो ड्रास्टिक है। जो एक नॉर्मल वेरिएशन है नॉर्मल वेरिएशन नहीं है, वहां पर एक आपके पास एक्सेप्शनल वेरिएशन है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नजर आती है कंपैरिजन में तो उसकी डिटेल्स और उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी वर्किंग जो है सारी की सारी आप SA 520 के अंदर इसके साथ रखेंगे। सिमिलरली जो टोटल आपके पास इंटरेस्ट आपने अर्न किया है ऑन एडवांसेस और जो टोटल आपके पास एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, उसकी फिगर्स को भी आप कंपेयर करें। जो टोटल आप एवरेज एडवांसेस और एवरेज डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो एक ब्रॉडली आपके पास यहाँ पर SA 520 बता देगा कि ब्रॉडली आपके पास जितनी भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो कोरिलेट करता है या नहीं करता है। तो
रिव्यूअर आपका जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं ऐसे 520 के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास सैम्पलिंग ऐसे 530 आता है। अब सैम्पलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि जो टोटल आपने वर्किंग करनी है, जो टेस्ट चेक आपने करना है, जहां पर हम रिपोर्ट में कहते हैं कि हमने टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर किया, 100% नहीं किया, और जो हमारे पास ऑडिट है वो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। वो रीजनेबल एश्योरेंस आपको तभी दे पाएगा अगर आपकी जो सैम्पलिंग ऐसे 530 के अंदर है वो एडिक्वेट एंड प्रॉपर है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम ऑडिट करते हैं तो बैंक ऑडिट अपॉइंटमेंट आती है तो कई सारी चीजें हमारे पास उसके अंदर ही लिखी होती है। फॉर एग्जांपल कि जितने भी आपके पास लार्ज एडवांसेस हैं जिनकी लिमिट 2 करोड़ से अबव है या 5% ऑफ द टोटल एडवांसेस है, उनकी डिटेल्स एनेक्चर जाता है एलएफएआर के साथ, तो उनको तो आपने डिटेल्स लेना ही लेना है। सो ऑटोमेटिकली ऐसे जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं जो जिनकी लिमिट 2 करोड़ से ज्यादा है या 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो है, वो आपको अपने सैंपल साइज के अंदर लेना है। सेकंड पॉइंट कुड बी टॉप 10 बोरोवर्स बाय आउटस्टैंडिंग। अब जितने भी आपके पास आपके अकाउंट्स हैं उसमें जितने टॉप 10 के हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम है उनको आप अपने सैंपल में ले सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि अबाउट 5 to 10 अकाउंट्स व्हिच हैव बीन सैंक्शन्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आप अपने सैंपल में ले सकते हैं। फिर आपके पास जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स में आपके पास आ जाएगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गई, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट होगी, लास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हो गई। तो उन रिपोर्ट्स में अगर कोई अकाउंट्स आपके एडवर्स रिमार्क्स वाले थे तो आप काइंडली उन अकाउंट्स को भी अपने सैंपल साइज में ऐड कर लीजिए, क्योंकि एलएफएआर के अंदर भी ये आपके पास क्वेश्चन होता है कि क्या आपने प्रीवियस रिपोर्ट्स जो है उनको वेरीफाई किया है या नहीं किया। तो यहाँ पर जब रिव्यूअर ये देखेगा कि क्या आपके पास एविडेंस क्या है उसके बारे में, तो इसमें जो रिपोर्ट्स हैं आपको पूरी रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है अपने पास पेजेस एंड पेजेस, एक्सेप्ट जो जहां जहां आपके पास ऑब्जर्वेशन, जिन जिन अकाउंट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन और जितना रेलिवेंट पोर्शन है उसके अंदर से वो आप उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। तो ब्रांच मैनेजर को भी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा और आपको भी अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए, उसमें मॉडिफाई करने के लिए, उसका अपडेट लेने के लिए दैट विल बी इजी एंड हेल्पफुल। सो जितनी भी आपके पास अकाउंट्स हैं विद एडवर्स कमेंट्स इन प्रीवियस रिपोर्ट्स वो आपके पास सैम्पलिंग के अंदर आ सकती है। अनदर फैक्टर है आपके पास जो सैम्पलिंग में कि फ्रेश एनपीएस इस साल के अंदर आपके पास कितनी है। फ्रेश एनपीए की भी आपके पास जब एनपीए की स्टेटमेंट आप लेते हैं और एक अलग से भी जो फ्रेश एनपीएस आपके पास ईयर मार्क हुए हैं तो उसकी भी लिस्ट आपके पास आ जाती है। तो मेक श्योर कि जितने भी आपके पास एनपीए इस साल में नए आए हैं तो उनको भी आपने जॉट डाउन किया हुआ है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी फाइल के अंदर प्लेस करी हुई है। एनपीए से रिलेटेड एक और कुछ अकाउंट आपके पास हो सकते हैं कि जो एनपीए अकाउंट्स थे जिनको आपने अपडेट किया है, अपग्रेड किया हुआ। तो अगर कोई ऐसा अकाउंट आपके पास है जो पहले एनपीए था उसको आपने अपग्रेड कर दिया, तो ऐसे अकाउंट्स को भी आपने वेरीफाई करना है और अपने सैंपल के अंदर उसको इंक्लूड करना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर से आता है कि अगर कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो पूरे साल के अंदर पहले तो डाउनग्रेड किए, एनपीए किए और एनपीए करने के बाद उनको फिर आपने अपग्रेड कर दिया, तो ये भी लिस्ट एक आपके पास सीबीएस सिस्टम में से निकल आती है। तो ऐसे अकाउंट्स को भी आपने अपने सैंपल के अंदर रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सैंपल साइज के अंदर आपके पास आती है कि जो आपके पास एसएमए की इरेगुलर स्टेटमेंट्स हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा तवज्जो दीजिए आप जो 31 दिसंबर की आपके पास स्टेटमेंट है। अब 31 दिसंबर की स्टेटमेंट और 31 मार्च की स्टेटमेंट को आप सामने सामने रख लीजिए। अगर कुछ अकाउंट्स आपके पास 31 दिसंबर के अंदर इरेगुलर थे और वो 31 मार्च में आके आपके पास रेगुलर हो गए, तो उन अकाउंट्स को भी आप अपने सैंपल साइज के अंदर इंक्लूड कर लीजिए और वो देख लीजिए कि किन कारण से उनको अपग्रेड किया गया है। कहीं वो डेलिबरेटली या विद मिस स्टेटमेंट की तरह या कोई फ्रॉडुलेंट वे में तो उसको अपग्रेड तो नहीं किया गया। तो ऐसे अकाउंट्स जो 31 दिसंबर पे आपके पास इरेगुलर थे और 31 मार्च को वो रेगुलर हो गए हैं, तो उनको भी आपने अपने
वर्किंग पेपर्स में आपने इंक्लूड करना है और उसको चेक करना है। सैम्पलिंग के अंदर एक और कुछ हमारे पास पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपके पास वर्किंग है, वो डिपेंड करती है इसी चीज के ऊपर कि आपने अपना सैंपल साइज कैसे चूज किया हुआ। सो ऐसे 530 फ्रेंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टू कंक्लूड कि भाई आपने एक अच्छा ऑडिट किया हुआ और एक प्रोफेशनल ऑडिट किया हुआ। सिमिलरली अगर आप एक स्टेटमेंट बैंक उससे निकलती है कि क्रेडिट सबमिशन सीसी अकाउंट्स के अंदर, कि पूरे साल के अंदर जो आपके पास कौन कौन से सीसी अकाउंट्स हैं और उनकी क्रेडिट और डेबिट सबमिशंस क्या है। तो जब आप लिमिट से क्रेडिट सबमिशंस को गौर करेंगे, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे कि जहां पर उनकी जो क्रेडिट सबमिशंस है, दोज आर नॉट इनकमेंसुरेट विद द लिमिट सेंचर। या तो उनके पास जो क्रेडिट सबमिशंस है बहुत ज्यादा होंगी, या क्रेडिट सबमिशंस उनके पास जो है वो बहुत कम होंगी। तो दोनों केसेस में अगर आपके पास ऐसे अकाउंट्स हैं, तो आपको उसको अपने ऑडिट सैंपल के अंदर ऐड करना है। अगर क्रेडिट सबमिशन बहुत ज्यादा है, तो आपने सिर्फ ये देखना है उसके अंदर से कि जो उनकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं, वो उससे कोरिलेट करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर क्रेडिट सबमिशन सपोज लिमिट आपके पास 50 करोड़ की है और टोटल जो क्रेडिट सबमिशंस हैं आपके पास वो 500 करोड़ की आपके पास क्रेडिट सबमिशंस आ रही है, तो क्या 500 करोड़ की टर्नओवर आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? तो जब रिव्यूअर आपके पास आएंगे, तो रिव्यूअर इस चीज को भी गौर करेंगे कि जो क्रेडिट सबमिशंस हैं, अगर आपके पास ऐसे अकाउंट्स हैं, तो जहां पर वो कोरिलेट करती हैं या नहीं करती। सिमिलरली आपके पास अगर डेबिट सबमिशंस हैं, डेबिट सबमिशंस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपके पास कैश क्रेडिट जो लिमिट है वो किसके लिए, आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए। तो क्या आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो आपने जो इशू किए हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए इशू किया हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए इशू किया हुआ है, तो क्या वो आइटम्स जो टोटल्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट में कोरिलेट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोरिलेट करते हैं या नहीं। सो ये कुछ इश्यूज हैं आपके पास जो सैम्पलिंग में ऐसे 530 में कवर होते हैं, और ये आपके टोटल ऑडिट को एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो स्टैंडर्ड हमारे पास है दैट इज गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न में अगर आप देखे जाएं तो हमारे को गोइंग कंसर्न एज ए बैंक एज ए होल तो आप पता लगा सकते हैं। हाँ, इसमें आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर सपोज ब्रांच कॉन्टिन्यूसली आपके पास लॉसेस के अंदर जा रही है, ऑपरेशनल लॉसेस के अंदर जा रही है, उनके कारणों से जा रही है, और अगर ब्रांच के आपके पास लेवल ऑफ एनपीएस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सो अगर आपके पास कोई हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एडवांसेस इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हो रहा है, या 2 या 3 अकाउंट्स में जो टोटल एडवांस है, सपोज आपके पास 50 करोड़ के एडवांसेस हैं और 50 करोड़ में से आपके पास 25 या 30 करोड़ के एडवांसेस सिर्फ 1 या 2 पार्टीज के लिए, तो उन पार्टीज का कंडक्ट कैसे है, तो उनका फ्यूचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ब्रांच के ऊपर। तो यहां पर अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, तो इस चीज को आप ऐसे 570 में कवर करेंगे, और अप्रोप्रिएट जो है उसके कमेंट्स आपके पास अपनी ऑडिट फाइल के अंदर जरूर होने चाहिए। नाउ रिटन जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसे 580 के अंदर हमारे पास कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कि जैसे हमारे पास कोई भी आपके पास ओके, रिटन रिप्रेजेंटेशन में मतलब ये है यहाँ पर कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसका आपको रिप्लाई ब्रांच से राइटिंग में लेना है। अब उसमें कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि एक तो ब्रांच ने जितने भी लॉसेस और क्लेम्स हैं उनका प्रोविजन कर दिया है। सो एक आपके पास रिटन कम्युनिकेशन के अंदर इसके बारे में लाइन होना चाहिए। दूसरा एक लाइन आपके पास और होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस। तो एक इसके बारे में भी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट उसके अंदर से है कि जितने भी हमारे पास एडवांसेस हैं, दोज आर बीइंग carried at the value which has been stated in the statements.
तो जितनी भी आपके पास जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, जितने भी एडवांसेस हैं, कि उसके अंदर से वो उतनी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, उसके अंदर से कोई उसमें कोई हेरा फेरी या उसको एग्जैजरेट किया हुआ है या इस तरह से कोई ऐसा नहीं है। तो एक इसके बारे में, और जितनी भी क्लासिफिकेशन है एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, वो भी प्रॉपरली की गई है। तो ये कुछ चीजें, और साथ में एक आप और इसमें से ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा नोटिस ब्रांच के पास कहां से, किसी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से या आरबीआई के डिपार्टमेंट से कोई ऐसा, या कोई कंप्लेंट है, कोई, वो सारी की सारी चीजें ब्रांच के पास अगर आई हैं तो उनको एडिक्वेटली डिस्पोज ऑफ किया गया। तो इन चीजों के बारे में भी आपको ऐसे 580 में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, तो उसका एक अहमियत आ जाती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स आपके पास ऑडिट के सामने आते हैं, तो उनको आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कवर करना। ऐसे 580 के बाद हम आते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो हम चलो उसमें देखेंगे बाद में। और ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स, एक ये जो मैटर है आपके पास ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर सपोज आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, उसके बारे में आप डिस्कस यहाँ पर 701 में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास एनपीएस हैं, एनपीएस हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू सीबीएस सिस्टम। सो एक ये आप अपना 701 के अंदर आप लाइन लिख सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजनिंग जितनी भी है, वो भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू होती है, उसके बारे में भी आप 701 में शेयर कर सकते हैं। और तीसरी चीज आप जो इसमें से शेयर कर सकते हैं वो ये है कि जितने भी प्रोविजंस हैं, वो जजमेंट के बेसिस के ऊपर आपने एस्टिमेट किए होंगे। और जितना भी इसके अंदर आपके पास डेटा है, डेटा आपने पास जो जिसके बेसिस के आपने फॉर एग्जांपल लोन्स एंड एडवांसेस स्टेटमेंट है, उसमें जो वैल्यूएशन आ रही है आपके पास, जो वैल्यूएशन आपने आ रही है, या डीपी स्टेटमेंट आपके पास आ रही है, जो आपके पास स्टाफ ने पंच किया हुआ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफ कोर्स आपने इसको वेरीफाई तो करना ही करना है, अगर सपोज आप डीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेरीफाई करेंगे। बट 701 के अंदर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी हैव, मतलब कि वी हैव रिलाइड ऑन द डेटा व्हिच हैज बीन punched into the system। 705 मॉडिफिकेशन में अगर सपोज आपके पास कोई एमओसी है, तो दैट विल बी गवर्न्ड बाय एसएस 705। तो जब रिव्यूअर है, तो जब आपने कोई एमओसी दिया है, तो उससे रिलेटेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रूफ आपके पास हैं, वो सब इसके अंदर से दिए जाएंगे। और मैटर ऑफ एम्फेसिस 706 के अंदर अगर सपोज आपके पास घोष कमेटी और जिलानी कमेटी में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर में ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, उसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के नॉलेज में लाना चाहते हैं, तो आप 706 में यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेशन ऑफ ड्यूटीज वाला है, और फ्रॉड्स के बारे में अगर कोई आपकी ऐसी ऑब्जर्वेशन वगैरह है जो डिस्क्लोज्ड है इंफॉर्मेशन, बट यू वांट टू एम्फसाइज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर्स, तो वो 706 में आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, क्योंकि भगवान दास जी भी हमारे पास हैं, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास। SQC के अंदर आप ये देखिए कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली हैं सी एक्ट के अंदर, और एक इंडिपेंडेंस की हमारे पास बात आती है। तो हमारे पास SQC 1 के अंदर इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट। तो अपनी जो इंडिपेंडेंस, जब आप एज ऑडिटर जा रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर कि यू आर इंडिपेंडेंट, यू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो आप हैं ही, एंड यू रिमेन इंडिपेंडेंट ऑल्सो, ताकि आपने जो अपना काम है ऑडिट का अनड्यू और अनवांटेड और एग्जैजरेटेड हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा आपका SQC 1 के अंदर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो हमने जब शुरू में बात करी थी कि प्लीज मेक श्योर
दैट जो आपके पास स्टाफ आपने डिप्यूट किया है, तो जब ऑडिटर आपके पास, जो रिव्यूअर आपके पास आएंगे, तो वो इस चीज को एम्फसाइज करेंगे जो आपके पास ऑडिट स्टाफ आपने था, कि वो वेदर उनकी एडिक्वेट क्वालिफिकेशन थी, उनको एडिक्वेट नॉलेज वगैरह थी या नहीं थी। तो इस चीज के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी एम्फेसिस रिव्यूअर देखते हैं। फिर जो आपके पास एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आपने और उसकी मॉनिटरिंग है वो किस तरह से करी थी, इसके बारे में भी कोई ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन को आपने कैसे सेटल डाउन किया, उसको कैसे मॉनिटर किया और कैसे कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा। तो ये भी कुछ एस्पेक्ट आपके पास रिव्यूअर गौर करते हैं। सो लास्ट में मैं जो एक बात करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में, कि पूरे ऑडिट के अंदर आपके पास जो स्केप्टिज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट है, और रिव्यूअर भी ये कोशिश करता है कि जब रिव्यू करने जाता है तो क्या ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से काम किया है या नहीं किया। और स्केप्टिज्म कैसे वो चेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज कुछ आपके पास बीजीज इन्वोक हुई हैं, तो उनकी अगर पेमेंट हुई है तो पेमेंट कहाँ से हुई है, तो आपके पास जब रिकॉर्ड देखते हैं तो उस बीजी इन्वोक की कहीं पर उसको रेफरेंस मिल जाता है, तो यू हैव टू मेक ए पेपर कि वो आपने कैसे उसको सेटल डाउन किया। और जो डीपी स्टेटमेंट्स हैं, आपने डीपी डिटरमिन करी हैं आपने लोन्स एडवांसेस के लिए, तो वो किस बेसिस के ऊपर आपने उनका एडवांसेस अकाउंट के अंदर डीपी के अराइव किया है, क्या उसमें आपने पुरानी स्टेटमेंट्स को कोरिलेट किया हुआ या नहीं किया हुआ, जो स्टॉक्स हैं आपके पास वो पुराने नहीं थे, उनकी जो वैल्यूएशन है उसके बारे में क्या आपने डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, ऑब्सोलीट स्टॉक्स तो नहीं है उस, तो ये चीजें जो हैं। और सिमिलरली जो आपने सैंपल के अंदर जब आपने सीसी अकाउंट्स को देखा हुआ है, कुछ ऐसे अकाउंट्स तो नहीं सामने नजर आए कि जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आके आपके एडजस्ट हुए हैं, तो या फॉर एग्जांपल कुछ किसी अकाउंट के अंदर कोई सडन एक्टिविटी तो आपसे नहीं हो रही, तो यहाँ पर जितने भी हैं स्केप्टिज्म आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो रिव्यूअर भी अपनी जजमेंट और वो भी स्केप्टिज्म का एक जो है फिनोमिना वो अप्लाई करता है प्रैक्टिसिंग यूनिट के ऊपर, उसकी फाइल के ऊपर, टू सी whether the documentation is proper or not, or appropriate and due care has been observed by the auditor or not. और लास्ट में जो हमारे को ये देखना होता है कि जो यूडिन्स हैं आपने दो जनरेट किए हुए, वो आपने यूडिन्स जो यूडिन है आपने वो जिस दिन आपने साइन किए बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है आपने, तो उस दिन आपने एक टैक्स ऑडिट के लिए और एक ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो यूडिन आपने जनरेट किए हैं या नहीं किए। सो ये कुछ ऐसे एरियाज थे जो एज ए रिव्यूअर, जब रिव्यूअर पीयर रिव्यूअर आपके पास आएगा तो फाइल्स के अंदर आपको चेक करेगा। और एक जरूर चीज मैं इसको कंक्लूड करने से पहले कहूंगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं, जो डॉक्यूमेंट लिए हैं, उनको चाहे वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है चाहे वो हार्ड कॉपी में है, प्लीज मेक ए प्रॉपर इंडेक्स, उसको डेट वाइज करें, उसको नंबर वाइज करें, पेज वाइज करें, और एक प्रॉपर इंडेक्स बना के अपनी फाइल के अंदर लगाएं, तो दैट विल हेल्प यू। और ये हमारे पास जो ऑडिट रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, एज ए जो चेकिंग का जनरल कंट्रोल्स हमारे पास आते हैं, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर से आता है। So with this, I thank you very much to the organizers, BVSS, for this seminar and giving me the opportunity, and wish you all the very best. और with the pray कि हम लोग ये जो कोरोना हमारे पास एक फेज चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम लोग सब अपने हेल्दी एंड हैप्पी अपना काम ये कंप्लीट करें। With this, जय हिंद। Over to भगवान दास जी। Thank you, Shashi ji. Frankly speaking, when we were designing this topic, so it was really difficult to think whether all these points will be covered. And of course, you have come out very nicely so far as documentation in case of bank audit is required. So I'm thankful to you. But at the same time, if there is any question, like Shashi ji, I have got one or two questions that is relating to communication with the previous auditors. You had narrated that the communication with the previous auditor has to be done through registered post. So whether in today's circumstances, it is not enough we communicate through emails only, because normally emails of the previous auditors are given in the appointment letter only.
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भगवान दास जी आप। आज का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक है, मगर ये मेरी ड्यूटी थी कि जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड लॉ है वो मैं उसके साथ शेयर करूं। और अब जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो हमारे को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हमने ईमेल से उनको कम्युनिकेट किया है तो दैट इज गुड एनफ। Otherwise also Saji, during the last 3 or 4 years, what I have noticed that most of the previous auditors, even since we are the auditor, so they are communicating with us also, and similarly we are also communicating with the previous auditors. Normally we are communicating with internet. So I think the institute has not recognized the communication through emails. भगवान दास जी, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे पास जो इसके बारे में एनओसी के बारे में फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 8 आप एक बार पढ़ लीजिए तो वहां से आपको सेटिस्फाई हो जाएंगे। वहां पे तो रजिस्टर्ड पोस्ट ही लिखा हुआ है। हाँ, तो और साथ में जो अभी पीछे एक जजमेंट भी आई हुई है हमारे पास हाई कोर्ट के अंदर, वहां पर भी उन्होंने ये रूल दिया है कि कम्युनिकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इज इम्पोर्टेंट। कंफर्मेशन वहां से आना जरूरी नहीं है, बट सेंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। Okay. Any other question by any of the members or the panelists so far as this particular topic is concerned? In the meantime, महेश जी भाई साहब has joined us, so I welcome him. महेश जी भाई साहब, आपका कोई क्वेश्चन रहा हो या बाकी के किसी पैनलिस्ट या किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो रिलेटिंग टू? बहुत इलुस्ट्रेटली शशि जी ने सब चीजें बता दी हैं, मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन है। थैंक यू महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज का जो दूसरा टॉपिक है, सॉरी प्लीज एक मिनट भगवान जी, एक बार जरा ये पता करना, किसी भी सभी मेंबर्स को Q&A टैब नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्वेश्चन आंसर का नहीं आ रहा। हाँ ये है, दिस इज देयर। Q&A नहीं आ रहा आपके पास? नहीं सर। ओके, लेट मी चेक इट आउट। ओके गोपाल जी, since this topic is also very dear to you, have you anything to supplement please? नहीं आप करिए सर। इनफैक्ट क्या है कि मुझे मैं अपने तो बस BBSS के अंदर एक बहुत अच्छा ये लग रहा है, गोपाल जी आप भी दूसरी जगह बोल रहे हैं, शशि जी भाई साहब भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन जितना कंफर्ट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बाकी जगहों पे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना कंफर्ट फील नहीं होता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप नहीं, मेरा सर पॉइंट इतना ही है कि जैसे अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है कि एक बैंक ने IBA को लिखा कि बैंक ब्रांच ऑडिटर्स की जरूरत नहीं है, इसको इस बार एग्जेम्प्ट कर दें या डिसकंटिन्यू कर दें। तो उसमें सबसे बड़ी प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्हाट आई फील कि मोर और लेस 100% रिपोर्ट्स बैंक की क्लीन ओपिनियन जाती है ब्रांच ऑडिटर्स से। और एक रिपोर्ट RBI ने अभी कुछ साल पहले पब्लिश की थी कि इन ओनली 3% ऑफ द केसेस MOCs आर सजेस्टेड बाय द ऑडिटर्स। और उसी रिपोर्ट में फर्दर लिखा हुआ था सर कि 80% जो MOC जो होती है वो रीजनल लेवल पे LHO पे टेकअप नहीं हो पाती ड्यू टू रॉन्ग कोडिफिकेशन, या वो एज पर पॉलिसी ऑफ द बैंक नहीं होती। 0.6% केवल MOC इफेक्टिवली पास की जाती हैं आफ्टर द बैंक ब्रांच ऑडिट, और 0% ऑलमोस्ट रिपोर्ट आपकी क्वालिफाइड होती हैं। इसका मतलब कि 100% क्लीन ओपिनियन आती हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच बिग एक्सरसाइज? ये हमें कहीं ना कहीं एज ए प्रोफेशनल वी हैव टू जस्टिफाई दिस थिंग, और हमें कहीं ना कहीं अपने आप को अगर इस असाइनमेंट को सेव करना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेरा व्यू पर्सनल ये है कि एग्रीकल्चर ब्रांचेज में सिवाय एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन की क्लीन ओपिनियन कभी भी नहीं बन सकती सर, जिस तरह से वहाँ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो वी हैव टू बी कोप अप विद दोज स्टैंडर्ड्स ओनली। तो मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से कि काइंडली रीड 705, 700 ये जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे शशि भाई ने कहा। और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस वी कैन शेयर द ड्राफ्ट कॉपीज ऑफ आल्सो ऑफ द एडवर्स ओपिनियन एंड द क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि गाइडेंस नोट के अंदर एक्चुअली सर है क्या कि ये दिया नहीं है फॉर्मेट। तो लोगों की एक प्रिजम्पशन होती है कि बैंक ऑडिट में तो हम क्लीन ओपिनियन के अलावा कोई दूसरी ओपिनियन दे ही नहीं सकते। और कई बैंकों में तो यहाँ तक है कि उसमें लिमिटेड वर्ड्स में आप कुछ अपनी रिमार्क्स भी दे सकते हैं, जैसे 500 वर्ड्स का उन्होंने खोला हुआ है विंडो, और अगर आपकी ओपिनियन डिफरेंट होती है तो 500 वर्ड्स में वो आ नहीं सकती। तो उसमें एक ही ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उसमें एक रिमार्क्स डालें कि अगर फिजिकल ऑडिट रिपोर्ट सब्स्टिट्यूट दिस सॉफ्ट रिपोर्ट, दैट इज द ओनली ऑप्शन। और अगर इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, और MOCs पे भी थोड़ा सा कि MOC जो ब्रांचेज MOC फ्री जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रांचेज में कोई गलती नहीं होती। ऑन द फेस ऑफ इट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसमें मिस्टेक्स मिलती हैं इफ वी गो थ्रू इट।
So it is my humble request to my friends कि काइंडली रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वी आर साइनिंग, उसके आपस में जो मिसमैचेज होते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उसमें आपको टेकअप करना है एमओसी के थ्रू, और जो रिपोर्ट्स हैं आपकी वो टॉप राइट में पर आपको कम से कम काइंडली गो थ्रू द रिपोर्ट कि ऑडिट रिपोर्ट में आप लिख क्या रहे हैं, क्योंकि कई बार जैसे आपने मुझे गाइड किया है, भगवान दास जी ने गाइड किया है, उन्हीं की बात कह रहा हूँ कि डेलीगेटेड अथॉरिटी, नॉर्मली लोग ये मान के चलते हैं कि अगर एडवांसेस बियॉन्ड अथॉरिटी किए तो वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर ब्रांच हेड ने कोई भी सर्कुलर इंटरनल सर्कुलर बैंक का ओवरराइड किया है तो दैट इज आल्सो बियॉन्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल उन्होंने नेचुरल कैलेमिटी में रिस्ट्रक्चरिंग की है, लेकिन वो जो नॉर्म्स लेट डाउन है उससे बियॉन्ड की है, तो दैट इज आल्सो बियॉन्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। और हमारा मेन ऑडिट रिपोर्ट में जो रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्वेश्चन है वो बियॉन्ड डेलीगेट अथॉरिटी के ऊपर है, सो दैट शुड बी रिपोर्टेड ओवर देयर आल्सो एज वेल एज इन एलएफएआर। मेरा सब्जेक्ट आज था नहीं, इसलिए फिर भी मैंने कहा इतना आपने जब अपॉर्चुनिटी दी है, सो जस्ट आई वांट टू suffice and thank you very much. Thank you, Gopal ji. Akesh ji, you are here. Akesh ji, tomorrow's topic actually that will be taken by Akesh ji, and that will be, let me inform in advance, it will be a very interesting topic. So apart from IRAC norms, the aspects relating to launch advances are need to be reported in LFAR. And there are certain advances which we people are not that accustomed to do, like audit of forex transactions. So what I will request all the members to please tell others also to join tomorrow positively, because not only that, housing loan, education loan, vehicle loan, term loan or CC, rather export advances. Similarly, in case of non-funded facilities, in case of non-funded facilities, particularly how to verify the advances in case of LC or the bills discounted under LC. These two aspects I have especially requested Mr. Akesh to cover in his deliberations tomorrow. So anyway, so now my turn is to cover this topic. Frankly speaking, Sasiji was allotted to ask time, but he said specifically told me that he won't be taking for more than 1 hour. मैंने कहा फिर मैं कुछ क्वेश्चंस रेज कर दूंगा, मैं टॉपिक तो नहीं लूंगा। तो टॉपिक जो आज का है वो है दैट इज रिलेटिंग टू COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 ऑफ मार्च 2020। इसमें सिंस अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट है दैट इज रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ यस बैंक वर्सेस अनंतराज क्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो उसकी वजह से काफी चेंजेस आ गए हैं। So what I request all the members and all the panelists to please supplement me wherever they need necessary, because very truly if you ask me now to deliberate on this particular topic as is not so easy so far as the judgment of that a particular case is concerned. Coming to the topic, the purpose of announcement of this regulatory package was to mitigate the burden of debt servicing brought out by disruptions on account of COVID-19 pandemic. So the thrust here is, if the disruptions in the business of any entity is due to this COVID-19 pandemic, then this the benefit of this circular will be available. And number two, and basically they have put the word and, to ensure the continuity of viable businesses. Again, here is where there may be some point like any business which is not viable, whether the regulatory package will be available. So we will be deliberating upon all this. And what are the packages? There are three types of packages. Number one, in case of term loan, what RBI has suggested that all term lending institutions, whether they are public sector banks, private sector banks, cooperative banks, small finance banks, or financial institutions, or even the non-banking finance companies, they are permitted. Please note the word, they are permitted to reschedule the loan amount of interest or principal or both by a period of 3 months. और किस केस में? On
the balance on any amount in the period from 1st March 2020 to 31st May 2020. Meaning thereby 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच में कोई भी अगर मेरी EMI ड्यू है, कोई भी मेरी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का अमाउंट ड्यू है इन केस ऑफ टर्म लोन, then that will be deferred for a period of 3 months. अब डेफरमेंट कब तक के लिए? तो फॉर एग्जांपल मेरा कोई लोन चल रहा है 60 मंथ्स के लिए और 12 महीने मेरे ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो मेरा जो रेजिडुअल टेनर है दैट इज 48 मंथ्स. तो वो ये कहते हैं कि दिस टर्म विल बी एक्सटेंडेड बाय 51 मंथ्स, बेसिकली 3 महीने आगे ही चला जाएगा. फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ओके 3 EMIs तो एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन 3 EMIs पर इन दिनों में जो इंटरेस्ट होगा उसका क्या होगा? तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि उन्होंने 3 EMIs फॉर सिंपलिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, इफ एनी अमाउंट रिमेन्स टू बी अनसर्विस्ड, basically this interest on these 3 EMIs during this period of these 3 months, that will be served in the next, that is 64th month. फिर उन्होंने कहा कि EMI का यहाँ पर मतलब क्या है या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स का यहाँ पर मतलब क्या है? तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स को भी बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि दिस इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट, बुलेट पेमेंट, EMIs और even credit card dues. Here the credit card dues are very important to understand, because normally it is understood that the credit card facility is in the form of revolving credit facility, but here they have treated the credit card dues as term loan. So they say that the outstanding dues of the term loan will also be deferred by a period of 3 months. Then they say that what's about the interest? Interest will not be waived, though it will be continue to be debited. Whether any penal interest will be charged? Answer is no. There is no provision of any penal interest so far as this COVID-19 package is concerned. Then in case of CC, what they say that in case of CC accounts, any interest falling due on the balance outstanding on 1st March 2020 to 31st March 20 will be deferred by a period of 3 months. Meaning thereby March, April और May, इन 3 महीने के अंदर कोई भी मेरी इंटरेस्ट डेबिट होगी, that will be deferred. कब तक के लिए और कब तक सर्विस होगी? तो 3 महीने के लिए डेफर्ड होगी. But they again say that the interest debited during these 3 months will be payable immediately after the moratorium period is over. Moratorium period here is 3 months. So what they say, the interest of these 3 months will have to be payable, will have to be paid in the month of June only. Now the question comes after understanding these two concepts कि इनको कौन कैसे, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? क्या बैंक हर बोरोवर से कंसेंट लेगी, या हर बोरोवर को लिखना पड़ेगा, या हर बैंक अपने आप में एक वेबसाइट पर अपनी पॉलिसी होस्ट कर देगी? तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स द बैंक हैज टू कम आउट विद द policy and they have to put it on the website. Like we might have noticed that even the State Bank of India or the PNB, they have deferred all across. But at the same time, if we see the case of HDFC Bank, Axis Bank or Yes Bank, they have sent the SMS to the borrowers. और borrowers से उन्होंने कहा है कि हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, opt in and opt out. Opt out का मतलब है कि I am not interested in getting this relief. I am interested in paying my EMI as I have been paying in the past. Those who want to opt in, those who want to take the advantage of this deferment, or they want to get the installments deferred, then they have to opt in. और उनके पास एक OTP आएगा, and based on that OTP, their installments or the payment of the interest will be deferred. So again, the question is should be very clear, as I have just deliberated. It is not necessary or it is not obligatory on the part of each and every borrower to opt in so far as the relief measures are concerned, or so far as the deferment of the interest and principals are concerned. If you are having sufficient funds in your saving account, where you are likely to earn 2.5% or 3.25%, whereas you have to pay 7% to 9% in case of vehicle loan or any other type of loan which you are enjoying, I think you are not going to opt for it. So it is up to you to decide
it is up to you means up to the borrower whether he wants to go for opt-in or not. Then they have again said, and the third point that is relating to this regulatory package, that is, in case there is a financial stress, again there is a disruption, financial stress I am using the word, but there is a disruption due to this COVID-19 pandemic. तो उन्होंने कहा है कि in case of CC accounts or in case of CC credit facilities, banks at the request of the borrower, they can reschedule or they can reappraise the credit facilities. और reappraise of the credit facilities को यहाँ पर उन्होंने define किया है कि suppose borrower request that you please reduce my margin, borrower may request कि मेरी जो operating cycle है वो बढ़ गई है, I mean to say कि मेरे पास debtors का पैसा है वो नहीं आ पा रहा, तो debtors जो they used to be of 60 months or they 60 days or they used to be of 30 days, now you please extend this period to 120 days or 150 days or even 6 months. Similarly, in case of the borrower may request that the stock has piled up and I'm not in a position to dispose of this stock, even that stock which I'm going to produce in the time to come, I may not be dispose it of immediately. So better it is that my holding period of the stock will be somewhat say 90 days instead of 30 days. So you please reduce the operating cycle also. So reducing margin in case of debtors and stock, and increasing the holding period in case of this debtors and stock is also permitted. Now, why these three important points, why these are very important to discuss, and why RBI has come out and why this deferment is different from the deferment as we discussed in case of restructuring of the cases. Normally, whenever there is a borrower who is in financial distress or is in financial difficulty, and he requests the bank for all or any of these favors, like rescheduling of the loan, deferment of the loan, any fresh advances, then this is called restructuring. And except certain exceptions, considering certain exceptions, normally the account will have to be downgraded and the account will be treated as having been restructured. But RBI has specifically said that in all these three cases, the account will not be treated as having been restructured and the status of the account will be standard only, or it will not be downgraded. फिर बात ये कही गई कि अगर ऐसा है तो व्हाट्स अबाउट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बिकॉज नॉर्मली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का उनका अपना अप्रेजल का तरीका होता है. तो उन्होंने कहा कि कुछ सभी जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो किसी भी बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री को इस नाम पर कि उसने इंस्टॉलमेंट्स का डेफर लिया था या उसने रिशेड्यूलमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और मार्जिन को करवाया था, उस नाम पर किसी भी बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं किया जाए या उसको अप्रेजल करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि दीज आर दी स्पेशल पैकेजेस अवेलेबल टू दी बोरोवर. फिर उन्होंने कहा कि क्रिलिक के केस में भी बैंकर्स की ड्यूटी है कि दे विल नॉट अपलोड दिस इंफॉर्मेशन ऑन दी क्रिलिक. फिर लास्ट में ये कहा गया कि व्हाट्स अबाउट वेदर दीज बिजनेसेस आर वायबल और नॉट. बोले वायबिलिटी को जरूर ध्यान रखना है कि सपोज अगर ऐसी कोई यूनिट ऑलरेडी जिसका पहले से ही होल्डिंग पीरियड 5 साल 5 महीने चल रहा था, पीरियड ऑफ 60 डेज. सिमिलरली इन केस ऑफ डेटर, holding period of the stock had gone up like anything or in multiples in vis-a-vis the appraised holding period. तो उन्होंने उसमें कहा है कि ऐसे केसेस को ऐसा माना जाएगा कि they are not eligible so far as the enhancement in the operating cycle is concerned or the reschedulement of the operating cycle is concerned, because the disruption or the increase in their period, holding period, is not due to the pandemic, this COVID-19 pandemic, that was otherwise also very unusual. Now the question comes whether the account where the holding period was already in multiples vis-a-vis the appraising period of holding and the restructuring or the reschedulement in case of this margin and operating cycle is done, so whether the account will be treated as having been restructured and the account will be downgraded. In my view, if you strictly analyze this thing, the account should be treated as restructured and it should be downgraded. लास्ट उन्होंने कहा है कि इन ऑल दीज केसेस 5 करोड़ से ऊपर की अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज है
तो उसमें बैंक को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क काम करे, यानी 5 करोड़ से ऊपर के केसेस में basically they want to monitor if any regulatory, the benefit of regulatory package was passed on to any of the borrowers, how they are performing. ये सब तो है जो आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी पैकेज के बारे में कहा है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और ये आता है कि सपोज डिसरप्शन माइट बी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, बट सपोज any within a period of 6 months, within a period of 180 days from the original date of review or renewal. Similarly, hello. Everybody is there, no? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Similarly, if the borrower has not stock statement for the last 6 months, so whether these accounts, say for 5 months are already over, and of course on 31st March the period will be 6 months, and the period of, in case of non-renewal or non-renewal, will be 180 days. Account will be NPA. But truly, if you ask me, the account will have to be classified as NPA, because there is nothing so as to say that the disruptions or this endemic had stopped the borrowers from submitting the stock statements or the or from getting their accounts review or renewal for more than 1 days. So in my view, these accounts or any accounts which is becoming NPA due to non-financial parameters, it has to be classified as NPA. Now the question comes, which I narrated in the very beginning, that is relating to the High Court judgment in case of Yes Bank versus Anantraj Clay Products. High Court ने इस केस में एक प्ली ली है और डिसीजन दिया है, वो दिया है कि 1 मार्च को जो अकाउंट का स्टेटस है, आरबीआई का इंटेंशन यही है कि वो उसको स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं और 31 मार्च तक वो अकाउंट को एनपीए निकालने देना चाहते हैं। अब मैं उसका एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक मैं चीज बताना भूल गया इन केस ऑफ सीसी अकाउंट, वो क्या था, इस सीसी अकाउंट के अंदर वन ऑफ द पैरामीटर्स इज लाइक इफ देयर आर नो क्रेडिट्स और क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू सर्विस द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मीनिंग देयरबाय अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो इंटरेस्ट डेबिट हुई है उतनी ही अगर क्रेडिट नहीं है अकाउंट्स के अंदर, तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। अब हियर क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पर 1 मार्च के से 31 मार्च की इंटरेस्ट तो डेफर्ड है, तो इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी कंसीडर करनी चाहिए, तो क्रेडिट्स कौन सी कंसीडर करनी चाहिए, तो क्रेडिट्स कहेगा, कोई कहेगा कि 2 महीने की कंसीडर करनी चाहिए जनवरी फरवरी की, बट समबडी में आर्ग्यू कि ये तो कहीं नहीं है कि सबको, ये पेंडेमिक की अगर बात छोड़ भी दूं अगर मैं इसकी कोरोना की, तो उस केस में क्या था, मैं मार्च तक कभी भी जनवरी फरवरी की अगर मैंने इंटरेस्ट सर्विस भी नहीं की है, मैं कह रहा हूँ 28 मार्च तक की भी इंटरेस्ट सर्विस नहीं हुई है, 31 मार्च को आकर के अगर मैं पैसे जमा करा देता हूँ, एंड देन द अकाउंट गेट सर्विस्ड और द क्रेडिट्स इन द अकाउंट आर इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो माय अकाउंट इज नॉट एनपीए। सिमिलरली हियर इन दिस केस जनवरी और फरवरी की अगर कोई इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डेबिट हुई है और 31 मार्च तक भी मैं जमा करा देता हूं, तो अकाउंट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए। तो इसका एक मतलब ये निकाला गया कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को चेक करने के लिए इन केस ऑफ सीसी अकाउंट एक चीज देखनी है कि जनवरी और फरवरी के अंदर जो इंटरेस्ट डेबिट हुई है और क्रेडिट जनवरी फरवरी मार्च तीनों की कंसीडर करेंगे, यानी इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी शुड बी less than or equal to the amount credited in the account during the months of January, February, March. Then the account will not be treated as NPA. अब वो क्या कह रहे हैं कि 1 जनवरी को जो अकाउंट का अगर स्टेटस को रहता है, क्योंकि इसको भी जरा टर्म लोन के केस में भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, 2-3 डिस्प्यूट है, मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इस पर थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा लीक से अलग हट करके सोचें।
अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा था, दैट वाज रिलेटिंग टू ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या था, उन्होंने ये कहा कि एनी अकाउंट, तो मास्टर सर्कुलर ये कहता है कि इफ एनी अमाउंट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट इट बिकम्स द ओवरड्यू ऑन द नेक्स्ट डेट। और सॉरी, ये नहीं कहा गया, आई एम सॉरी, कहा यह गया है कि इफ एनी अमाउंट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट इट बिकम्स ओवरड्यू। अब इसके दो अर्थ हैं कि सपोज मेरी कोई भी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को ड्यू है और मैं नहीं पे कर पाया, तो वो 31 दिसंबर को ही ओवरड्यू हो जाएगी या 1 जनवरी को ओवरड्यू होगी। सम ऑफ द मेंबर से कि भाई ड्यू अगर 31 हुआ तो 31 तक तो मुझे पे करना था, तो उस दिन तो ओवरड्यू नहीं हो सकती, ये 1 को ही ओवरड्यू होगी। कुछ मेंबर्स का कहना ये है कि भाई 31 तक अगर आपने नहीं पे किया तो ये ओवरड्यू हो गई, और ओवरड्यू हो गई तो नेक्स्ट डे से ही ओवरड्यू पीरियड कैलकुलेट किया जाए। अब ये समय, ये एक दिन का जो मैटर है, नॉर्मल वे में तो इसको हम इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि अगर सपोज ये लीप ईयर नहीं होता, ये नॉर्मल ईयर होता, तो अगर 31 दिसंबर को कोई भी मेरी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है तो मोर देन 90 डेज है इन केस ऑफ टर्म लोन, सबको पता है। तो जनवरी के 31, 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31 टोटल मिलाकर के 90 डेज होते हैं। तो इफ एनी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड ऑन 31 व्हिच वाज द ड्यू डेट and if we treat the same date as due, same date as overdue, the account as overdue, तो मेरा अकाउंट फिर भी 31 मार्च को एनपीए नहीं हो रहा। बट इफ द इंटरप्रिटेशन इज लाइक दिस in this particular year, that is 2020 or in any leap year for that matter, if the account has, the installment was due on 31st December and if it is not paid on 31st December, then it will become overdue on the very same day. तो इस केस में मेरा जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन और मार्च के 31 दिन 91 डेज हो जाते हैं, एंड दैट इज मोर देन 90 डेज। तो इन दैट केस अकाउंट विल बिकम एनपीए। तो एक तो ये ड्यू और अनड्यू का कॉन्सेप्ट लोगों ने नया रख दिया, लेकिन नॉर्मली फिर लोगों ने अपनी कंसेंसस बनाने की कोशिश की है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स और द पैनलिस्ट टू सप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। फिर साथ में ये कहा गया, जो यहाँ पर हम लोगों के बीच में, सभी स्पीकर्स के बीच में एक ओपिनियन बनी कि ड्यू डेट एंड अनड्यू डेट, due and undue cannot be on the, due and overdue cannot be on the same date. लेकिन इसमें से एक चीज जो मैं आप सब लोगों की नोटिस में लाना चाह रहा हूं, because I have also interacted with some of the bankers, that the banks start charging penal interest from 31st December on. The day it was due and if it is not paid, they start charging penal interest from the same day. So I don't know whether their software is designed in such a way that they have to collect the penal interest from that day only, and they think that since the money has not, the account has not been serviced with that part of the amount, इसलिए मुझे उसी दिन से इंटरेस्ट लेनी चाहिए। या एकेडमिकली और लीगली भी सेम डेफिनेशन है, ड्यू और ओवरड्यू कैन बी ऑन द सेम डे। दिस इज टू बी डिसाइडेड, बट टू माय व्यू एंड सो फार वी हैव बीन टेकिंग लाइक if any amount is due on 31st, it will become overdue on 1st January only. फिर उसमें से बात क्या आती थी, जैसे मैंने भी आपको इस टर्म लोन के केस में बताया कि टर्म लोन के केस में इस बार जो अमाउंट यस बैंक वाला केस में आपसे डिस्कस कर रहा था, उसके अंदर 1 मार्च को कोई अमाउंट ड्यू थी। उससे पहले 2 अकाउंट ऑलरेडी 2 महीने की इंस्टॉलमेंट हो चुकी। तो उन्होंने कहा था कि ये 1 मार्च को अकाउंट आपका एनपीए नहीं था। अगर 1 मार्च को एनपीए नहीं था तो सीइंग द स्पिरिट ऑफ द आरबीआई रेगुलेटरी पैकेज, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यस बैंक को इस अकाउंट को एनपीए नहीं करना चाहिए 31 मार्च को, इवन देन द इंस्टॉलमेंट फाइलिंग ड्यू ऑन 31 इज नॉट, बिकॉज द अकाउंट वाज नॉट एनपीए ऑन 1 मार्च। सो ये आरबीआई का ये उनका पैक आया है। टिल यस्टरडे फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज थिंकिंग दैट इट इज एन इंटीरियम ऑर्डर, बिकॉज 4th of May हैज अगेन बीन फिक्स्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि अनंतराज क्ले प्रोडक्ट्स ने ये कहा था कि हम 22 मार्च तक नहीं, 25 अप्रैल तक, शायद 22 अप्रैल है, 25 अप्रैल है, हम लोग इसमें पैसा जमा करा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट इसमें से नया निकल के आया है जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोगों का व्यू ऐसा है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो अनटिल अनलेस आरबीआई कम्स विद सम अगेन सम नोटिफिकेशन, द हाई कोर्ट का जो जजमेंट है दैट विल प्रिवेल, और उसी के हिसाब से हम लोगों को अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि यार हाई कोर्ट का अगर जजमेंट है तो ये अपने दिल्ली तक ही सीमित रहना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। लेकिन कल
और लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि यार दिल्ली हाईकोर्ट का अगर जजमेंट है और कोई दूसरा अगर हाईकोर्ट कोई और जजमेंट नहीं दे रहा तो मान के चलना चाहिए कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ अस। सो अगेन अभी तो बहुत टाइम है ऑडिट शुरू होने में, क्योंकि गोपाल जी अग्रवाल जो दरियागंज वाले उन्होंने क्वेश्चन किया कि इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस क्या ऑडिट शुरू हो पाएगा। तो गोपाल जी अभी जैसे गोपाल जी अग्रवाल यानी गोपाल अग्रवाल जी से मैं बात कर रहा हूँ। गोपाल जी अग्रवाल ने जो कहा कि अभी तो यही बात चल रही है कि ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि गुड सेंस प्रिवेल्स और ऑडिट होता है। ऑडिट होता है तो कैसे होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो मैटर है तब तक मुझे लगता है रिजॉल्व होना चाहिए, और रिजॉल्व नहीं होगा तो मुझे लगता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ना कोई इस पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन तब तक आ जाएगा। अगर अपन में से इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज come out with that, or if there is any supplementation from any of the panelists, I will request all the panelists to please come out with their views. Sir, one question has come from a participant, whether COVID-19 relief package also applies to non-fund based limits like LC payments as well? बिल्कुल विपिन जी, सभी पर एप्लीकेबल है। अब नॉन फंड बेस्ड में कहाँ और कैसे होगा वो सोचिएगा। नॉर्मली नॉन फंड बेस्ड जब तक आपकी एलसी आपकी ड्यू नहीं हुई है, आपने एलसी सपोज मैं कह रहा हूँ आपने फरवरी के मंथ में ली है और 3 महीने के लिए एलसी है, तो आपकी ड्यू बनेगी, मैं मान के चलता हूँ 28 फरवरी को लिए तो मार्च अप्रैल और मई में बनती है ड्यू आपकी। मई में ड्यू बनती है और मई में अगर आपका अकाउंट में बैलेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एलसी अगर इस 3 महीने के अंदर डिवॉल्व भी हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि डिवॉल्व होने के बाद अकाउंट 90 डेज तक ओवरड्यू होगा तब आपका अकाउंट एनपीए होगा। तो इवन देन द अकाउंट द सीसी अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, द अकाउंट विल नॉट बिकम एनपीए टिल 90 डेज आर देयर। सो इन उस नाम पर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं, आई एम श्योर कि ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज पे भी एप्लीकेबल है, पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैंने एक एलसी का एग्जांपल देके बताया है कि अगर एलसी कोई मेरी ड्यू भी होती है और मेरे अकाउंट में बैलेंस है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, और अगर बैलेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स मेरे को 90 डे डिवॉल्व भी हो जाएगी तो मुझे 90 डेज के बाद अकाउंट को एनपीए करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन और एनी, मतलब आई विल रिक्वेस्ट महेश जी भाई साहब और गोपाल जी या शशि जी या अपने आकेश जी कि कहीं पर कोई भी अगर ऐसा है कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू सप्लीमेंट। हमारे पार्टिसिपेंट का भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन क्यूए टैब। हेलो, विपिन जी। जी, तो एक टॉपिक और है फिर उसको कवर कर लें। हाँ सर, 1 मिनट। 2 मेंबर्स के मनीष गुप्ता जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? दिनेश कुमार अग्रवाल जी, दिनेश जी। Yes, sir. Do you want to ask any question? I just want to supplement one thing. Yeah. भगवान दास जी, जैसे अभी आपने ये कहा है ना आरबीआई के जो पैकेज की जो बात कर रहे हैं ना हम, तो इसमें इन्होंने अभी कुछ बैंकों ने एक फैसिलिटी और दी है, दे आर गिविंग एडहॉक लिमिट up to 10% of the total credit facility availed by the borrower, including fund based, non-fund based and term loan. That is to be repaid after 1 year moratorium within the next period of 2 years. Dinesh ji, normally ad hoc facility is given for a period of 3 months. And maximum it can be rolled over for a period of another 3 months, 3 months plus 3 months. और मैं आपको एक चीज बताना इसलिए भूल रहा हूँ, एक चीज भूल गया मैं, सप्लीमेंट इसलिए बार-बार कह रहा था, this regulatory package, whatever regulatory package has been given to any of the borrowers, it has to be completed by 31st May 2020. ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। भगवान दास जी, इस केस में जो है ना यूनियन बैंक ने मेल दिया था क्लाइंट को कि भाई वी आर ऑफरिंग 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन लिमिट एज ए एड हॉक लिमिट, एड हॉक सैंक्शन लिमिट that is to be repaid over a period of
2 years after 1 year moratorium, and we have applied for the same and it is in the process. You mean to say कि हमने किसी को 10% of the total credit facilities enjoyed by the borrower हमने उसको ad hoc दिया, उसमें हमने 1 साल का moratorium दिया और 2 साल का रिपेमेंट पीरियड दिया। जैसे जैसे जीएसटी में आया था ना, जैसे कुछ बैंकों ने जीएसटी लोन दिए थे, जिनका पैसा जीएसटी में ब्लॉक हो गया था, उन लोगों को उन्होंने, जिनका जीएसटी में पैसा ब्लॉक हो गया था, तो उन्होंने जितना पैसा ब्लॉक था उसका 75% 60% बैंकों ने उनको पैसा दिया था, that is to be repaid over a period of certain period. Just like this, the Union Bank has come out with this proposal to the borrowers that whatever your this CC limit, term loan outstanding and bank guarantee, not LC, whatever is the total limit, sanction limit, and 10% of which that will be allowed to you, maximum 10% of which will be allowed to you as ad hoc facility, which is to be repaid within a period of 3 years with 1 year moratorium. One thing. Second thing, 25% of the same will be utilized for payment of salary and wages, and 75% has to be utilized for the purpose of running the unit. That you need to justify. Then why do you need this thing? This is a proposal which the Union Bank has given to us, and we have applied for the same for some of our clients. So why, I don't know whether this is Union Bank is doing this thing and all other banks are doing. दिनेश जी, इसमें ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि आरबीआई का कहीं पर कोई पॉलिसी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको क्या बेनिफिट देना है और किस रूप में देना है और कितना देना है. This is what they have left to the wisdom of the board of directors of the bank. What they have said that there should be a board approved policy and it should be hosted on the website. Number one. Number two, हमें क्या देखना है कि बोर्ड की जो मतलब पॉलिसी है ओवरऑल, उसमें वो फ्रेमवर्क में आता है या नहीं आता है. उन्होंने साथ में ये भी कहा है, मतलब जब इस कॉर्पोरेट पैकेज के बारे में उन्होंने जब कहा है रेगुलेटरी पैकेज के बारे में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हम कोई नॉर्मल आईरैक नॉर्म्स को नहीं चेंज कर रहे हैं. तो नॉर्मल आईरैक नॉर्म्स को नहीं चेंज कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट 19 रेगुलेटरी पैकेज के अंतर्गत अगर कोई भी बोर्ड कोई भी पॉलिसी बनाता है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म इन केस ऑफ ऑल द बोरोवर्स, तो मुझे लगता है कहीं पर कोई हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नहीं, मेरा जो वांटेड टू सप्लीमेंट. शशि जी, यू वांटेड टू सप्लीमेंट ना? हाँ, यस यस. सी, जो इन्होंने यूनियन बैंक का केस बताया, टू माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जैसे हमारे पास इस आरबीआई सर्कुलर में कहा गया है कि कोई भी आपके पास प्रपोजल है, आप May 31 बस 2 कर सकते हैं, और कोई नहीं हो उन्होंने फॉरवर्ड करी और उस चीज को कंसीडर करते हुए ये बैंक को उन्होंने परमिशन फॉरवर्ड को दी होगी. अदरवाइज अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें कि जो आरबीआई का सर्कुलर है, उसमें ऐसा जो आपने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है आपकी कि इस तरह से आप एड हॉक फैसिलिटी आप 1 साल का और 2 साल का मॉरेटोरियम में सब चीजें इस तरह से पॉसिबल नहीं है अनटिल जब तक इसको रीशेड्यूलमेंट उन्होंने नहीं किया. दैट्स इट. एक दूसरा टॉपिक है जिसका मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल आईरैक नॉर्म्स ही हम लोग करेंगे, एंड दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसएमई एडवांसेस. सर मनीष जी का भी एक क्वेश्चन है, शायद मनीष जी हैं? हाँ सर, मैं था. भगवान दास जी, गुड आफ्टरनून. मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ नोएडा से. हाँ मनीष जी, नमस्कार. जो आपका क्वेरी थी ना कि इंटरेस्ट जो आप कहे थे ओवर ड्यू और ड्यू होना चाहिए 31 दिसंबर को लेना ही लेना, अगर आप देखें बैंकों का जो सिस्टम है वो लाइन है 1 जनवरी से, जो 90 डेज लेता है वो system is aligned from 1st of January. They are calculated 90 days from 1st of January. So from my perspective, the 90 days has to be taken from 1st January, not from 31st December. Because otherwise, there could have been a question from RBI if the system have been designed in contravention to the RBI requirement. Because all the system have been designed to calculate 90 days from 1st of January. This you can also cross check and cross verify. Thank you. मनीष जी, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से मत लीजिए, आप इस तरह से लीजिए, सिंपल वे में लीजिए. आप 1 जनवरी और 31 दिसंबर नहीं करते हम लोग. मेरा एक छोटा सा, मेरा नहीं एक्चुअली, ये किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया और उस पर देयर आर सो मेनी स्पीकर्स ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पर इतना हॉट डिस्कशन रहा कि मैं 3 दिन तक अभी तक कंक्लूड ही नहीं हुआ वो एज सच, एक्सेप्ट दैट इट वाज क्लोज्ड लाइक वी आर सेंडिंग दिस फॉर क्लैरिफिकेशन टू द आरबीआई. यहाँ कह करके वो बंद करना पड़ा. क्वेश्चन कहाँ पर है कि सपोज मैं 31
दिसंबर 1 जनवरी की बात नहीं करता। एनी अमाउंट और एनी EMI फॉल्स ड्यू ऑन 20th दिसंबर, और 20th दिसंबर को बोरोवर नहीं पे करता। अब ये ओवरड्यू कब कहलाएगी? 21 को कहलाएगी या 20 को कहलाएगी? क्वेश्चन इज दिस। वही सर, वही आई एम क्लैरिफाइंग कि if the installment is getting due on 31st, then they are calculating 90 days in the system which they have designed. They are calculating 90 days from 1st January. It means that the system is calculating 90 days from the next day, not from the day, from the same day. So अगर सारे बैंकों ने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है तो इनडायरेक्टली तो आरबीआई ने उसको वेरीफाई कर रहा है टाइम टू टाइम एंड अगेन, आरबीआई इज वेरीफाइंग द सिस्टम ऑडिट आर बीइंग डन, so indirectly it makes out that it is from the 1st of January. This is my interpretation. We can again come back to this. नहीं, अगेन देयर इज अ पॉइंट। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपने BBSS में यही तो एक खूबी है सारे प्रोग्राम की, कि हमें कोई बहुत जल्दी नहीं होती है। आज 20 दिसंबर, जैसे आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बैंकर फ्रेंड से भी पता किया भाई अगर मैं सेम डे अगर अमाउंट अगर मैं सर्विस नहीं कर पाता तो हाउ यू आर गोइंग अहेड सो फार एज चार्जिंग ऑफ पेनल इंटरेस्ट इज कंसर्न। उन्होंने कहा अगर आपका 20 को नहीं आया तो मैं 20 से ही पेनल इंटरेस्ट आपसे वसूल करूंगा। उसने भी लॉजिक सही दिया। उसने लॉजिक इस तरह से दिया कि सपोज आप कोई चेक मेरे यहाँ जमा करा देते हैं, आपको मैं नेक्स्ट डे क्रेडिट देता हूँ, और सपोज सेकंड डे वापस आ जाता है, जो थर्ड, तब 3 दिन की पहले बैंकिंग होती थी, तो उन्होंने कहा हम 1 दिन की क्लियरिंग आपसे डेबिट करते थे नॉर्मल वे में। सिमिलरली इन दिस केस अगर मेरा पैसा सपोज आप 20 तारीख को ड्यू हुआ, 20 को ही आ जाएगा, तो 1 दिन की इंटरेस्ट मेरे को मिलती, जिसको मैं लूज कर रहा हूँ केवल आपके ना देने की वजह से। इसलिए मैं मानूंगा कि मेरा अकाउंट उसी दिन ओवरड्यू था, और मैं उस ओवरड्यू कैलकुलेशन भी उसी दिन से करूंगा। ये तो हो गई चार्जिंग ऑफ पेनल इंटरेस्ट फ्रॉम 20th of December। अब बात दूसरी है, यहाँ पेनल इंटरेस्ट चार्ज करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि अकाउंट NPA हो रहा है, और वो भी चौथे साल में हो रहा है, यानी 20 में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की डिस्कशन हम लोग 24 मार्च को कर रहे होंगे, 2024 में कर रहे होंगे, सो फार एज लास्ट क्वार्टर इज कंसर्न। तो एक इंटरप्रिटेशन किया गया कि ड्यू और ओवरड्यू, किस दिन ड्यू है तो उसी दिन ओवरड्यू हो जाएगा क्या? वेदर ड्यू एंड ओवरड्यू ऑफ एनी अकाउंट, इफ इट इज ड्यू, वेदर इट कैन बी ओवरड्यू ऑन द वेरी सेम डे, इट इज अ क्वेश्चन। अगर ऐसा नहीं है और हम सब लोगों को क्लैरिटी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। But my view was in this particular case, if any account is becoming due on 1st of January and if it is not serviced, then and if we treat like it has become overdue on the very same day, then the account will become NPA on 31st, क्योंकि 31st को 91 days हो जाएंगे अगर हम फर्स्ट को भी इंक्लूड करते हैं तो, और otherwise the account was becoming NPA if the amount was due on 31st. So एक चीज और I want to highlight. This was the only thing which I wanted. One more thing I want to highlight that जो इन्होंने RBI ने जो exemption दिया है, that is for the amount which is falling due from 1st March to 31st May. So it means in term loan and CC account, especially CC account, because usually the interest gets debited or charged at the end of the month. So it means फरवरी का जो इंटरेस्ट जो मेरा चार्ज हुआ उसका मुझे रिलीफ नहीं मिला है। तो अगर मेरा जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों महीने का अगर पेंडिंग है तो अकाउंट विल बिकम NPA, क्योंकि 1st of January में मेरा कोई भी इंटरेस्ट डेबिट नहीं होता है, इट इज ओनली 31st मार्च को डेबिट होता है। जनवरी का इंटरेस्ट तो जनवरी एंड में डेबिट हो जाता है। नहीं, जो फरवरी का इंटरेस्ट है उसका रिलीफ नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मेरा फरवरी का इंटरेस्ट फरवरी में एंड में डेबिट होता है। they are giving relief from 1st of March, amount which is falling due on 1st of March. So my interest benefit for February is not given. नहीं मनीष जी, ये तो मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा ही है ना कि इंटरेस्ट डेबिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी विल बी कंसीडर्ड, and credits in the month of January, February and March will be considered. Yes. जब कहते हैं कि whether there are credits, whether there are no credits or credits are sufficient to service the interest debited during the same period or as on the date of balance, जब बात करते हैं तो हम जनवरी फरवरी मार्च की इंटरेस्ट और जनवरी फरवरी मार्च की क्रेडिट दोनों को देखते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में ड्यू टू दिस रेगुलेटरी पैकेज हम लोग देखेंगे कि जनवरी और फरवरी की इंटरेस्ट और जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने की क्रेडिट्स को कंसीडर करेंगे। नहीं तो we have to see दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि मार्च का ड्यू हुआ ही नहीं है, तो we have to see दिसंबर जनवरी if you want to make NPA। नहीं, आप उसको उस तरह से देखिए, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। As on the date of balance sheet means there are 4 balance sheet dates for our audit purposes. Of course 31st March is the balance sheet date, but if you go for quarterly review, आप तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी रह चुके हैं, तो आपने जून का भी क्वार्टरली रिव्यू किया होगा। इवन दी कॉन्करेंट ऑडिटर्स डू द क्वार्टरली रिव्यू, हमने जून का भी किया, जून की भी डेट होती है, सितंबर की भी डेट होती है, then 31st December is also balance sheet date. So when we talk of balance sheet date, because language is like
if there are no credits or credits are not sufficient to service the interest debited during the same period as on the date of balance sheet, means balance sheet date 1st January to 31st March, इससे पहले जो हुआ होगा उसमें हमने कंसीडर कर लिया हुआ दिसंबर का इंटरेस्ट, दैट वाज डेट फ्रॉम 1st अक्टूबर टू 31st दिसंबर। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि दिसंबर की इंटरेस्ट भी कंसीडर करनी चाहिए, वो नहीं कंसीडर की जाएगी। रादर ये जो प्रॉब्लम आएगी मनीष जी, वो नेक्स्ट ईयर ज्यादा आएगी। नेक्स्ट ईयर का जब हम लोग कॉन्करेंट ऑडिट करने जाएंगे, नेक्स्ट ईयर का जब हम लोग ऑडिट करेंगे, तो वो क्या कहता है कि हमारी मार्च की इंटरेस्ट, अप्रैल की इंटरेस्ट, मई की इंटरेस्ट, इन 3 महीनों की इंटरेस्ट भी जस्ट आफ्टर मॉरेटोरियम सर्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि मार्च, अप्रैल, मई और इवन जून के अंदर भी जो इंटरेस्ट डेबिट होगी, तो उस साल में क्या होगा कि 3 महीने की क्रेडिट्स और 4 महीने की डेबिट्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, अनटिल अनलेस सम चेंज और रिवाइज सर्कुलर कम्स फ्रॉम द आरबीआई। तो जो आप कह रहे हैं, मतलब विद ड्यू रिगार्ड टू यू, दिसंबर की इंटरेस्ट को हमें कहीं पर भी कंसीडर नहीं करना, यहाँ पर हम केवल 2 महीने की इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे। और हम नेक्स्ट क्वार्टर की जब बात करेंगे 2020-21 की फर्स्ट क्वार्टर की, उस बार 4 महीने की इंटरेस्ट कंसीडर होगी या 3 महीने की कंसीडर होगी, अभी ये पॉइंट अभी फ्रैंकली स्पीकिंग डिस्कशन का, लेकिन मेरे हिसाब से 4 महीने की इंटरेस्ट कंसीडर। ओके, अब तो फिर तो 2-3 क्वेश्चन और कर लें आपस में, तो मुझे लगता है 2 बज ही जाएंगे, 1 बज ही जाएगा, फिर तो जरूरत नहीं है नए टॉपिक की आज डिस्कस करने की। any other issue, even beyond this topic, there is no problem. एक जो गोपाल जी ने जो क्वेश्चन उठाया था ब्रांच ऑडिटर्स का, जी क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं होती हैं, इनमें इंस्टीट्यूट के लेवल पे सेंट्रल ऑडिटर से ही बात करनी चाहिए। सेंट्रल ऑडिटर्स कई बार क्या होता है कि जैसे रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने किसी एक बैंक का रेफरेंस दिया कि 500 वर्ड्स की रिपोर्ट हम दे सकते हैं। बहुत सारी बैंकों की में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है, सेम रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल ऑडिटर ही अगर पहल करें तब जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिलीफ मिल। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उसमें महेश जी क्या कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, दोज हु वांटेड टू क्वालिफाई इन द ब्रांच लेवल, if the system is not allowing them, they can physically issue the report and they can send the report directly to the central auditor. हाँ, तो इसमें जब सेंट्रल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के साथ बैठते हैं तो उन्हें ब्रांच ऑडिटर्स को कुछ प्रिविलेज देनी चाहिए अपनी तरफ से कि भाई आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करो। सेंट्रल ऑडिटर से भी इंटरेक्शन होता नहीं है ब्रांच ऑडिटर्स का। सर जो बहुत सारे ब्रांच ऑडिटर चाह के भी सेंट्रल ऑडिटर से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। सर जब आप ब्रांच ऑडिटर्स को प्रिविलेज देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। द केसेस आर नॉट रिलेटेड टू मी, दे आर रिलेटेड टू गोपाल जी आल्सो। हमने कम से कम 4 या 5 साल इन पॉइंट्स को वेरी ट्रूली में से भी लोग कोई सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, तो विद ड्यू रिगार्ड टू देम, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का जो ओवरऑल रवैया होता है भाई साहब, हम लोगों के साथ में ब्रांच ऑडिटर्स के साथ में, वो प्रो ब्रांच ऑडिटर्स नहीं होता। रादर दे वांट टू सुप्रेस द फैक्ट्स, वेरी ट्रूली इफ यू आस्क मी। समटाइम्स they put certain embarrassment issues like us कि बीडी यार छोड़ देना यार, क्या चक्कर है भाई फालतू में, कोई अगर डिस्प्यूट का मैटर बना तो ये मैटर आरबीआई में जाएगा, मतलब इस तरह की बातें हैं। मतलब इफ यू आस्क मी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर से हम लोग कोई फेवर एक्सपेक्ट करें, हम उनसे कहें सर ये अकाउंट की पोजीशन है, क्या इस अकाउंट को मैं एनपीए करना चाहिए, प्लीज टेक योर कॉल। नॉर्मली दे विल नॉट से यस, क्योंकि उन्होंने अगर यस कर दिया और कल सपोज जीएम का मेरे पास फोन आता है या सीजीएम का फोन आता है, फिर मैं उनसे कहता हूं कि आई हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद योर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड ही हैज आल्सो कंफर्म्ड माय व्यू, तो वो उस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू फेस द सिचुएशंस देयर आल्सो। तो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इस मामले में हमें कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। यस, इंस्टीट्यूट उनको बुला करके मोटिवेट कर सकता है कि भाई यू हैव टू सपोर्ट एंड यू हैव टू रीड्राफ्ट, और यू आपको जो सिस्टम है ओवरऑल सॉफ्टवेयर है उसमें इस तरह का डिजाइन करना चाहिए कि ऑडिटर्स शुड बी फ्री टू पुट देयर व्यूज और टू पुट जो आपने मैक्सिमम 500 वर्ड्स की जो लिमिटेशंस रखी हुई है उस 500 को लिमिटेशंस को खत्म करो, और या फिर अल्टीमेटली इफ दे डोंट वांट टू सपोर्ट और द मैनेजमेंट डजंट वांट टू सपोर्ट अस, तो जैसा गोपाल जी ने कहा बिल्कुल सही है, हम लोगों ने भी ऐसा किया ही है, हमने लिख करके दिया है कि भाई हमारी फिजिकल रिपोर्ट है दैट सुपरसीड्स द रिपोर्ट सबमिटेड हियरिन, इस तरह से हमने दिया है। यस, फिर भी आपने कहा है तो अपने
रोहित जी और विपिन जी, ऑफ कोर्स आप भी एडवाइजरी बोर्ड में हैं ही हैं. मुझे लगता है दिस मैटर कैन बी रेफर्ड और दिस मैटर कैन बी टेकन विद द इंस्टीट्यूट. They should hold a meeting of the central statutory auditors and they should try to motivate them so as to support the branch auditors in performing their assignment. अभी तो एनपीए रिकॉग्निशन पर थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया, अदरवाइज बैंकर्स और ब्रांच ऑडिटर्स की लड़ाई हुआ करती थी इस बात पे कि भाई एनपीए है या नहीं है. चलो अब तो बैंकर भी इंटरेस्टेड है कि भाई एनपीए रिकॉग्निशन में थोड़ा उन्होंने नॉर्म्स ढीले करे हैं अपने, उनको एडवर्स नहीं ले रहे, अदरवाइज पहले तो यही लड़ाई हुआ करती थी. तो अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेंट्रल ऑडिटर को देखने वाले हैं कि भाई सेंट्रल ऑडिटर किस तरह से उसको लेते हैं. और बेसिकली क्या, वी आर सप्लीमेंटिंग टू द सेंट्रल ऑडिटर्स, ब्रांच ऑडिटर्स फ्रैंकली स्पीकिंग. तो सेंट्रल ऑडिटर को एक कॉल लेकर के, और अगर ये आरबीआई की कोई कॉल है तो उन्हें इसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए. महेश भाई ऐसा नहीं है, सेंट्रल ऑडिटर जो है ना, हम लोग जब, मैं जैसे एज ए सेंट्रल ऑडिटर रहा हूँ तो आपको शेयर कर दूंगा कि कई बार जो है हमारे ब्रांच ऑडिटर जो है, दे यूज्ड टू classify the account, they used to put the observation in the LFAR and don't classify the account as NPA. In fact, ये भी है कि LFAR को ऑडिट रिपोर्ट मान लेते हैं, LFAR को ऑडिट रिपोर्ट नहीं है. In those cases, we sometimes put down and ask the management to classify the account as NPA. It is not like that. I can't say what is the experience of Mr. B.D. Agarwal ji, but ऐसा नहीं है, because we are also working in the interest of this profession as a whole. So all मनीष जी प्लीज डोंट टेक इट लाइक जनरलाइजेशन. मैंने कोई आपको इस इशू को जनरलाइज करके नहीं कहा है. हाँ. ये दिस इज बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड इन द इंटरेक्शन इन सो मेनी सेमिनार्स ऑल अक्रॉस. आई एम यूजिंग द वर्ड ऑल अक्रॉस. और दूसरा मैं अपना और गोपाल जी का तो पिछले 5 साल का लगातार कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है. गोपाल जी है लाइन पर क्या अभी? गोपाल जी 5 साल से नहीं, होता क्या है मैं बताता हूँ. 10 साल का एक्सपीरियंस है. सारे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऐसे होते हैं. मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने ये मतलब it cannot be generalized. और होता क्या सर अग्रवाल जी होता क्या है कि क्या होता है कि फैक्ट्स एंड, कई बार क्या होता है, फैक्ट्स है ना, ब्रांच ऑडिटर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन फोन एंड वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द फुल फैक्ट्स. सो समटाइम्स वी हैव टू टेल देम कि भैया यू टेक अ कॉल ऑन योर बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट, बिकॉज जब तक मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं होंगे आई कांट गिव द जजमेंट, आई कांट गिव द आंसर. दिस इज आल्सो अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. हाँ गोपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप 5 साल का कह रहे हैं, मैंने कहा इसको बढ़ा के 10 साल कर दो सर. चलो 10 साल कर देता हूं. 5 साल के तो मुझे भुगतना पड़ रहा है ना आपका केस, इसलिए मुझे पता है. Sir, we have been issuing the adverse opinions for last 10 years invariably. सर भगवान जी टाइम हो गया, अभी 1 बज गया. हाँ ठीक है. तो सभी पैनलिस्ट का, महेश जी भाई अपने श्री अकेश जी का, श्री गोपाल जी का और शशि जी का मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और भारतीय वित्त सलाहकार समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूं. और मनीष भाई आपने जो लास्ट में इंटरेक्शन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. दिनेश जी का धन्यवाद कि उन्होंने सेमिनार को इंटरेक्टिव बनाया. विपिन भाई ने इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि दिस सेमिनार इज ओपन ओनली एंड ओनली टू द पेड मेंबर्स. इसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स भले ही कम रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है फिर भी जो डिलीवरी देना चाहते थे, particularly शशि जी ने जिस तरह से सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को कवर किया है, रियली इट वाज ए वंडरफुल डेलिब्रेशन ऑन हिज पार्ट. एंड मुझे लगता है कल हम वापस 11 बजे मिलते हैं. और कल का टॉपिक मुझे लगता है प्रोसीजरल मैटर्स में तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, ब्रांच ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि कल का जो टॉपिक है वो अपनी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा. समटाइम्स we are not well versed about so many policies or so many products which are there in the banking. So कल का हम सब लोग जो रह गए हैं, जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन नहीं किया है, वो कल ज्वाइन करें, भले ही उनके पास बैंक ब्रांच ऑडिट है या नहीं है. मेरा ऐसा सबसे निवेदन है. अगेन मैं सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान के साथ सर 2 मिनट अभी थोड़ा सा आई वुड रिक्वेस्ट महेश जी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट टुडेस सेमिनार. जी ने कहा, शशि जी ने बाकायदा सारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स को कवर करते हुए, और पीयर रिव्यू ने बेसिकली क्या है कि कैसे सारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स को हम यूज कर पा रहे हैं, इस पर ये बहुत बढ़िया लगा. हम बैंक ऑडिट के अलावा भी ये सारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स को अपने जनरल ऑडिट में भी यूज कर सकते हैं. तो बहुत इलूसिडली उन्होंने सारी चीजों को रखा है. तो मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा. मैंने सारा नोट भी किया है कि कैसे हम इनको
ऑडिट, कई बार इन जनरल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पता ही नहीं होता कि भाई ऑडिट स्टैंडर्ड को कैसे यूज करना है। तो उन्होंने बैंक ऑडिट से इसको टच किया है, लेकिन जनरल ऑडिट में भी जो उन्होंने आज 1 घंटा दिया, ये सबको मुझे लगता है काफी यूजफुल रहेगा। और बाकी तो सर्कुलर पर भगवान दास जी ने वो सारी बात कही है। इसमें मैं विपिन जी एक रिक्वेस्ट करूंगा जी कि सर। आप बाकी मेंबर्स को भी अलाउ कर देना चाहिए, सर हमने क्योंकि इस समय उसमें हमने फेसबुक लाइव कर दिया आज से सर। अच्छा ठीक है, अदरवाइज वी वर लूजिंग लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल, तो वी हैव स्टार्टेड टू द पेड मेंबर्स, और जिन मेंबर्स ने हमें रिक्वेस्ट भी की है वो नॉन पेड मेंबर्स नहीं है, हमने उनको भी सेमिनार में अलाउ किया है, बट ऑन रिक्वेस्ट। थैंक यू जी। Now I would formally request Vinod Kalra ji to please say a formal vote of thanks. Thank you very much, विपिन जी। बहुत शशि जी का उद्बोधन सुना मैंने, और ऑन स्टैंडर्ड्स जो सारे रादर जितने स्टैंडर्ड जो हैं वो कैसे फॉलो करने हैं फॉर बैंक ऑडिट एंड इन जनरल ऑडिट। महेश निगम जी कहा कि बैंक ऑडिट में तो करने ही करने हैं, पर बाकी में भी जैसे हमको करने हैं तो उनको कैसे कैसे फॉलो करना है। और भगवान दास जी को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कैसे जो आप जो नए लेटेस्ट सर्कुलर आरबीआई के आए हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाना है। और इनफैक्ट बीबीएसएस के साथ ये तो एक बहुत बड़ा वो है ही प्लेटफॉर्म, जिससे कि सब मेंबर्स को और घर बैठ के और संडे के दिन बैंक ऑडिट पे सबसे जानकारी प्राप्त होना एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, और सबने इसका फायदा उठाया होगा। और आगे भी मेरे को लगता है आगे आने वाले 2-3 दिन जो रहेगा ये बैंक ऑडिट का, तो हम सब इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवान दास जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ साथ शशि जी का भी, और महेश जी और अपना विपिन जी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो कल फिर मिलते हैं 11 बजे अगेन, सेकंड सेशन ऑफ दिस सेमिनार। थैंक यू ऑल। राष्ट्रगान। ओह यस सॉरी राष्ट्रगान कर रहे हैं। हाँ राष्ट्रगान, यस स्टार्ट प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात विंध्य हिमाचल तव शुभ नामे तव शुभ आशीष गाहे तव जय गाथा, जन गण मन जय 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 भारत माता की जय। थैंक यू, नमस्कार।